Yes. Good afternoon, friends. As we all know, this is GST Dialogue, where we are going to resolve all your GST related query, and we have our team member Ankit Garg as a GST expert, and our one of my good friend and expert in GST, Siddhant Pathak ji. So welcome to you on this discussion. And to each participant, once again, welcome to each one of you. Today, we are not going to discuss a specific topic relating to GST, but we are going to discuss your queries. If you have any query relating to GST, you can. Ankit ji, can we start by unmuting or? बिल्कुल 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 रेज हैंड करके हम अनम्यूट करते रहेंगे एंड लेट्स one to one let's discuss it. That will be better. So just raise your hand and unmute yourself one by one. बोलना मत, मैं कॉल पे हूँ. Kindly unmute if you have not any query. Many participants have unmuted. Please ask your query one by one. Also, you can write in a chat box if you don't want to unmute. Yes. And if you are comfortable, you can write in the chat box so that we can. Just a minute. Ankit ji, before starting, I think you can give brief about if any latest amendment, so that as we earlier. I basically सिद्धांत जी वॉइस मुझे ही सुमित जी की ब्रेक होके आ रही है या ठीक आ रही है सबको? सिद्धांत जी आपका अनम्यूट है, एक सेकंड मैं आपको. मेरे को ठीक आ रही है सुमित जी की आवाज. तो बस ठीक है. आपकी भी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है. मैं एक मिनट शिफ्ट कर रहा हूं जरा अपने आप को. तो गिव दी सेशन अ हेड स्टार्ट ना, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सो दैट क्वेरीज माइंड में आ जाएंगे. नहीं तो जीएसटी में बहुत कुछ है डिस्कस करने को. राइट. जी. ओवर टू सिद्धांत जी. हाँ. So few points I had jotted down basically to start with. What problems are we facing as GST consultants, I would say, these days, or as assessees? One thing is credit mismatching. Now, until 31st December 2021, there was no legal provision which restricted the availment of credit. मैं जो credit लेता था self assessment के basis पे लेता था, अपनी books of account के basis पे. I'm not going into the basically the controversy of GSTR 2A or 2B, which subsequently got implemented under Rule 36(4). But मैं बात कर रहा हूँ specifically Section 16(2)AA, जो statutory provision है, जहाँ पे उन्होंने मेरे credit को restrict कर दिया with effect from 1st January 2022 to the extent it is communicated to me in GSTR 2B. तो अब ये लॉ बन गया. अब see, when the government has implemented this provision, इसके पीछे एक background है. They, due to the number of tax, the quantum of tax evasion that has been happening since last 3-4 years since the implementation of GST, this has resulted in implementing stringent provisions, and one of which is restriction of credit to the auto population in 2B by inserting a statutory provision. Apart from basically curbing tax evasion, digitization can also be said as one of the factors, wherein government wants that everything should be digitized, everything should be streamlined. आपके supplier ने जो tax invoice अपने portal पे upload किया है, आपको उसी का credit मिले. Now, few other provisions which they have implemented are e-invoicing, wherein a person who is having a turnover of more than 20 crores, he issues an e-invoice, then it gets auto-populated in the return. So everything is getting digitized. So there are various motives of inserting such type of provisions. But having said that, the question arises whether as a bona fide buyer, as a genuine buyer, if a case occurs wherein a credit is not auto-populating in my GSTR 2A 2B, how can I litigate that? Basically, would I be denied the credit just because my supplier
has not filed his return properly, or I would even discuss a case wherein he has absconded. He has not paid the tax to the government. So in these cases, we will have to fight it. And regularly, few judgments are coming from the high courts wherein they are saying that, particularly Calcutta High Court has given two judgments, one of LGW Industries and one is Sanchita Kandu, which is in May 2022, wherein they say that अगर एक genuine buyer ने bona fide purchase की है and he has sufficient documents, then just because the supplier has subsequently been the registration has been cancelled by the department under an inquiry, or he has absconded, or he has not made payment of tax, तो हम bona fide buyer को ये credit deny नहीं करेंगे. These judgments are coming. So I would say that हमें इस provision से डरने की जरूरत नहीं है. इस तरीके के provision से हमें discipline ensure करना है to the extent possible, maximum possible, and then in any case अगर subsequent amount involved है और हमारा credit deny कर रहा है just because my supplier has not filed his return properly, or even if he has absconded, then we must fight the case. And the ultimate outcome, though not from the statutory courts, up till tribunal बहुत मुश्किल है relief मिलना, but from the high court we will be able to get relief. Then next issue which is usually comes is e-way bill issue. आपका e-way bill यहाँ आपने e-way bill issue किया हुआ है, tax invoice generated है, सब कुछ proper है, but उसमें एक minor discrepancy है जिसकी वजह से proper officer रास्ते में गाड़ी रोक लेता है और आप पे 200% penalty impose कर देता है. अब in cases में what we have to do, we have no other option but at that time to get the goods released by making this payment, or we can approach the high court and seek a direction. But high court भी यही कहता है कि आप एक bank guarantee submit करें और उसके बाद आप alternate remedy exercise करें. So we have the appellate courts of action. We have to file an appeal in those cases. There are I would say there are a few high court judgments wherein they say that if a person has issued generated an e-way bill and there is a tax invoice and both the documents are accompanying the goods during the course of transit, तो कोई minor discrepancy की वजह से आप penalty impose नहीं कर सकते under section 129. There is a circular also by the board. वहां पे उन्होंने कुछ discrepancies list down की है जहां पे ये penalty नहीं लगाई जा सकती, वो department officers के ऊपर binding है. But इसके अलावा that list is not exhaustive. इसके अलावा अगर कोई case है तो वो भी department को consider करना चाहिए, but department करता नहीं है. And day in day out we are seeing judgment जहां पे ये होता है कि, for example, today itself I was reading a judgment wherein a truck was detained at the service station during the course of transit. The truck driver had to carry the vehicle to the service station for some repair work, and the officers came at that place. They detained the goods. They said that you have rerouted the goods. So that was the allegation, but the High Court has negated that allegation and has ordered for release of goods. Another case is suspension, cancellation of registration, which we are seeing regularly. Department एक कोई भी reason को cite करके जो Rule 21 में given है, like in some cases basically the reason is not at all applicable to me. They are just writing a one line statement that person has issued basically fake invoices. You have not supplied the goods, but you have just made an invoice. So इस basis पे हम आपके registration को suspend करते हैं. This and that. They're not giving any detail, nothing. You have to approach the officer. तो ये कुछ issues हैं which are currently basically prominent in GST, I would say, and we must, as consultants, take proper care of our assessees in that. Now, correctly observed, सिद्धांत जी. अंकित जी, over to you for. बिल्कुल सिद्धांत जी, जो आपने टॉपिक्स उठाए जिसमें जो 2A वाला टॉपिक एंड 2B वाला टॉपिक, अगर मैं आज मेरे पास सुबह से शाम तक अगर 10 नोटिस आ रहे हैं तो इन 95% द क्वेरी एंड the discrepancy noticed by the officer is that your IT is not reflected in 2A. That's why not we reverse that ITC and that should be charged with the interest too. So ये topic सभी जितने भी हमारे viewers हैं, all they are facing this issue
एंड हमारा कहना, और सिद्धांत जी ने जैसे कहा, मेरा कहना भी सिंपल सेम है कि वी हैव द जजमेंट्स इन आवर फेवर, वी हैव द लॉ इन आवर फेवर. व्हाट वी से 16 subsection 2 subclause AA has been inserted by Finance Act 2022. Fine. Basically, so 21 by a notification in 2022 they have inserted. So in that case, how can the officer say that it is applicable from 2017? If it is applicable from 2017, then why there is a need to insert this section? Then we go with rule 36(4), which has been inserted by notification in November 2019. So then we say that why you have inserted in 2019 that rule, if 2A is applicable in 17-18 also. So these are the plea. But as Siddhant say कि ऑफिसर ने नहीं मानना जी, अपील वाले ने भी नहीं मानना 99%, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट ना आ जाए. मीनवाइल अगर अमाउंट क्वांटम हाई है. अच्छा, इसके अलावा ना 16 के अंदर और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मैंने पाया. बहुत सारे क्लाइंट ना सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे. मतलब खाली 2A का फैक्टर नहीं है, और भी कंडीशन फुलफिल नहीं है. पेमेंट नहीं करी जी 180 डेज के अंदर, और भी 4 कंडीशन वो प्रोवाइजो है, और भी 4 कंडीशन है जो फुलफिल नहीं कर रहे. तो उन कंडीशंस के केस के अंदर तो आप लिटिगेट कर ही नहीं सकते. मेरा मानना ये है. क्यों सिद्धांत जी? 2A की लिटिगेशन सस्टेन करेगी, बट अगर और भी कंडीशन आपने फुलफिल नहीं कर रखी, लाइक किसी का आपका 2A में आ रहा है, बहुत सारे क्रेडिट्स ऐसे हुए हैं जो 2A में आ रहे हैं, और वो 3 भी उसने फाइल नहीं करी बंदे ने, तो उस क्रेडिट को आप नहीं लड़ सकते. आप उस क्रेडिट के लिए नहीं लड़ सकते. हाँ, आप उस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं. वो जजमेंट का नेम सिद्धांत जी एक बार मैं रिमेम्बर नहीं कर, अराइज इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट. आप ये कह सकते हैं कि पहले शो को सप्लायर को दीजिए, उससे इंक्वायरी कीजिए, देन यू आस्क द डिमांड फ्रॉम अस. आप उसका सहारा ले सकते हैं. बाकी उसके अलावा तो और कोई फैक्टर है नहीं. अच्छा, एक चीज मैं और सब व्यूअर्स की नॉलेज में डालना चाहूंगा जस्ट 2 मिनट्स के अंदर. अभी मेरे पास क्वेरीज क्या आ रही है कि जो बिल रिफंड एक्सपोर्ट्स के बिल रेज होते हैं उसके अंदर IGST भी चार्ज कर रखा है क्लाइंट्स ने. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर $100 का कोई गुड्स भेजा, 100 को कन्वर्ट करा 71, अब तो 7800 7900 की बात करें, 7800 में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद उस पर IGST चार्ज कर लिया. तो और फिर विद पेमेंट ऑफ IGST कर दिया, ऑटोमेटिकली रिफंड भी आ गया. तो मेरा कहना यह है कि सर ध्यान रखें, अपने क्लाइंटों का बिल्कुल ध्यान रखें, उन्हें कम्युनिकेट करें कि IGST अगर आप क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, एक अनजस्ट एनरिचमेंट है जो हमने गुड़गांव वाले केस में भी सुना काफी जो हुआ. तो अनजस्ट एनरिचमेंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप अगर सामने वाले से चार्ज कर रहे हो GST, देन यू हैव टू पे इट. एक्सपोर्ट के केस में अगर आप सामने वाले से चार्ज कर रहे हो, अगर आप इनवॉइस पे लिख रहे हो कि IGST चार्ज्ड, और आप उसका रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो कल को लिटिगेशन आ सकती है. तो मेरा कहना यह है कि उसे ध्यान से देखें. अगर कस्टम से कोई रिफंड आ गया है या डिपार्टमेंट ने भी कोई रिफंड दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिफंड पास हो गया और वो रिफंड ठीक है हमारा. अगर कोई रिफंड हमारी नॉलेज में आता है कि नहीं जी उसमें गलती हो गई, जैसे कंपनसेशन सेस है, कंपनसेशन सेस अभी कोई जजमेंट मेरे अकॉर्डिंग फेवर में नहीं है. हाँ, अगर एक्सपोर्ट विदाउट अंडर LUT आप करते हो तो कंपनसेशन सेस का रिफंड मिल सकता है आपको, और अगर एक्सपोर्ट विद पेमेंट करते हो तो कंपनसेशन सेस का रिफंड नहीं आता. जो मैन्युफैक्चरर हैं जो कोल यूज कर रहे हैं उन पे कंपनसेशन सेस लगता है. तो मेरा कहना ये है, लॉ यही है. आपने, मेरे एक केस में क्या हुआ, क्लाइंट ने इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर कंपनसेशन सेस का रिफंड डाल दिया. सिद्धांत जी सुनिएगा, और वो रिफंड दे भी दिया डिपार्टमेंट ने. नहीं मिलेगा वो. तो गलत है वो रिफंड. मेरा कहना ये है कि रिफंड अगर डिपार्टमेंट दे रहा है तब भी लायबिलिटी क्लाइंट के ऊपर है. तो वो सब चीजें हम एज एन कंसल्टेंट जो देख रहे हैं हमें ध्यान रखना है. जब हम ऑडिट कर रहे हैं उसके एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें, रिफंड की एलिजिबिलिटी बनती है नहीं बनती है उसे बड़े ध्यान से देखें. सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स को बड़े ध्यान से देखें कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो कहलाएगी भी नहीं कहलाएगी, वो कवर भी हो रही है नहीं कवर हो रही है. सिर्फ ये मानना कि जी मेरी क्लाइंट की पेमेंट फॉरेन करेंसी में आ गई या मेरे पास शिपिंग बिल है, BL है, इट डज नॉट मीन कि आपकी GST की लायबिलिटी खत्म हो जाती है. तो मेरा कहना यह है कि उन प्रोविजंस को थोड़ा ध्यान से देखें.
क्योंकि कई जगह गलती हो रही है, मेरी नॉलेज में आया, तो मुझे लगा कि व्यूअर्स को बताना जरूरी है, तो मैंने एक बार शेयर किया। सिद्धांत जी, अब मुझे लगता है कि काफी सारी क्वेरीज आ चुकी हैं और व्यूअर्स हाँ भी जी, ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो लेट्स टेक क्वेरी वन बाय वन और लेट्स सी। first query is of Mr. Parag. Any specific format for application for rectification of errors apparent from record? So there is no specific format. You can submit an application under section 161 by submitting a letter to the concerned officer who has passed the order. अभी इसका कोई online facility भी नहीं है. So according to me, इसमें सिद्धांत जी शायद जो माई एप्लीकेशंस में जाकर ना, माई एप्लीकेशंस में जब हम जाएंगे ना, वहां पे एक जहां ऑर्डर हुआ है वहां पे ऑप्शन Okay. शायद इन्होंने एक्टिव कर दिया है, तो अगर Okay. ऑनलाइन ऑप्शन आ रहे हैं तो ऑनलाइन में जाके वो उसी फॉर्मेट में डलेगी है। Right. और मैं If चेक option is करके अभी बता भी देता हूँ आपको, 2 मिनट दीजिएगा, मैं चेक करके भी बता देता ठीक है. हूँ। हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करता हूँ तब तक. Query is from Ishan Monga. I need to know GST needs to be paid on reverse charge basis if goods purchased or availed any services from unregistered dealer. देखिए, जब GST आया था तब ये प्रोविजन था, but 13th of October 2017 onwards, this provision was basically an exemption was given by the law that no taxes need to be paid by under reverse charge. और subsequently जब फाइनेंस एक्ट 2018 आया तो उसमें उन्होंने इस प्रोविजन को ही खत्म कर दिया. तो आपको कोई रिवर्स चार्ज पे टैक्स नहीं देना है जस्ट बिकॉज यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर और अवेलिंग सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर. बारिंग सेक्शन 9(3) में जो नोटिफाइड सप्लाईज हैं और सेक्शन 5(3) में जो नोटिफाइड सप्लाईज हैं, अगर आप एडवोकेट से अपनी सर्विसेज लेते हैं वो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है. अगर आप जीटीए की सर्विस लेते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है. लेकिन सिर्फ एक अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज कर रहे हैं, आपको रिवर्स चार्ज में नहीं टैक्स देना है. हाँ, बस मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, अगर ईशान जी आपका क्लाइंट कोई रियल एस्टेट वाला है हाँ, तो उस केस में स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के द्वारा वो प्रोविजन डिफरेंट है कि सीमेंट पे आपको 100% रजिस्टर्ड बंदे से बाय करना है और टोटलिटी कैपिटल में गुड्स. 80% प्रोक्योरमेंट्स वुड बी फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन. तो वो चीज रियल एस्टेट में आपको ध्यान रखनी है, बाकी बिल्कुल अनरजिस्टर्ड पे कोई रिवर्स चार्ज नहीं है. सिद्धांत जी अगली क्वेरी लेते हैं प्लीज. Next query is from Mr. Sumit Nanda. Can I claim tax paid in Haryana in Delhi? Suppose I am registered in Delhi and I visit Gurgaon regularly where I pay GST on hotel bill. Can I claim same in Delhi if amount is substantial? How can I handle this situation? देखिए सुमित जी, आपकी क्वेरी बहुत अच्छी है. अगर हरियाणा के होटल ने आप पे CGST और SGST चार्ज किया है और आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, तो SGST का तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते. ये मैं इसका लीगल डेरिवेशन आपको दे देता हूँ. आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, अगर आप दिल्ली SGST एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे सेक्शन 16 ये कहता है कि आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं. इनपुट टैक्स डिफाइंड है विच सेज आपको क्रेडिट मिलेगा सेंट्रल टैक्स का, स्टेट टैक्स का, इंटीग्रेटेड टैक्स का. जब हम स्टेट टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ दिल्ली GST एक्ट में पढ़ेंगे तो वहां पे ये कहता है कि टैक्स चार्ज्ड बाय द स्टेट ऑफ दिल्ली अंडर दिस एक्ट. तो इसीलिए जो हरियाणा स्टेट ने SGST चार्ज किया उसका क्रेडिट आपको दिल्ली के रजिस्ट्रेशन पे नहीं मिलता है. अब बात करते हैं CGST की. तो इसकी लीगल डेरिवेशन मेरे को तो नहीं मिली है लॉ में, पर हाँ एक गवर्नमेंट का CBIC का ट्वीट था बिफोर 1st of July 2017 समवेयर इन जून 2017 जहां पे उन्होंने FAQs में क्लैरिफाई किया था कि C का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. पैन इंडिया मैंने अभी तक जो भी मैंने एसएससीज देखे हैं, कोई इस लिटिगेशन में नहीं गया है कि सी का क्रेडिट क्लेम कर रहा हो. इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर रही है इस व्यू को. इसमें एक इशू में बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ सिद्धांत जी. इसमें एक इशू प्रैक्टिकल पता है क्या आता है कि जब हम 3B के अंदर क्लेम करते हैं ना, तो आज भी इन्होंने कॉलम को चेंज नहीं करा कि मैं सेंट्रल का जब डालता हूँ स्टेट का अपने आप उठाता है सेम अमाउंट. उसमें तो आप ये कर सकते हैं कि एस का दिक्कत क्या है, अगर मुझे करना भी है ना, अगर मैं सेंट्रल का लूंगा तो पहले मैं पूरा डालूंगा, फिर नीचे SGST को रिवर्स करूंगा. ये एयरटेल की जो जजमेंट हुई थी ना, उसमें जो सर्विस टैक्स वाला क्रेडिट था उसमें बड़ा पंगा हुआ था. ये प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज. हाँ जी, तो ये सेंटर का जो क्रेडिट है वो लीगल उसका कोई लीगल सपोर्ट नहीं है, बट CBIC की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम इसका क्रेडिट नहीं देंगे. अब आपको अगर इसको लेना है तो आपको फाइट करना पड़ेगा एंड द लिटिगेशन विल सर्टेनली गो अप टिल सुप्रीम कोर्ट.
Then next query is from Mr. Harmanjeet Singh Dhingra. As a developer, do I have to pay GST as works contractor on share of portion given to landowner? Very right, Harmanjeet जी, आपने आंसर खुद ही दिया है और बिल्कुल सही दिया है. अंडर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो भी आप लैंड ओनर के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे आपको टैक्स देना है. जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस पे आप 18% जीएसटी पे करेंगे, बिकॉज दैट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस टू दी लैंड ओनर. एक जो आपने अपना पोर्शन बनाया है और इंडिपेंडेंट बायर्स को सेल किया है, दैट इज सेल ऑफ फ्लैट. अगर बिफोर कंप्लीशन है तो 5% 1% जीएसटी. बट जो आपने लैंड ओनर के लिए कंस्ट्रक्ट किया है वो कंस्ट्रक्शन सर्विस है जिसपे टैक्स इंडिपेंडेंटली लगेगा 18% ऑन दी वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस. इसमें हरमनजीत जी एक जो जजमेंट अभी मैं ऐड करता हूं सिद्धांत जी, जो गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, राइट एंड व्हिच हैज एडेड द वैल्यू टू दिस लिटिगेशन. जो एक इशू आता था, बेसिकली अभी हाई कोर्ट की जजमेंट है, दैट शुड बी बेसिकली चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. तो उसमें क्या इशू आ रहा है, जैसे साउथ दिल्ली में अगर हम बैठे हैं तो जो 1/3 की डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है लैंड की इन द रेट ऑफ 5% बिफोर कंप्लीशन की बात करें, तो वो डिडक्शन सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज लैंड इज टू हाई. लैंड इज ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कॉस्ट. सो आप उस गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट को भी एक बार देखें. जब आप अगर कोई इस तरीके की आपकी जब कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसको भी आप बेनिफिट उसका ले सकते हैं, एज माय ओपिनियन एंड एज पर इवन सिद्धांत ओपिनियन आल्सो, आई थिंक सो, and plus various consultant also we have discussed this issue. So they say there is no GST on JDA right now, but practically what Siddhant says 100% I agree with that, and accordingly गुजरात हाई कोर्ट की एक बार जजमेंट को आप फेवर में ले सकते हैं अपने. बिल्कुल. अगर मैं उसे 2 लाइंस में कंक्लूड करूं जिसमें जजमेंट को, तो दैट सेज कि जीएसटी कैन नॉट बी लेविड ऑन लैंड एंड गवर्नमेंट कैन नॉट डीम द वैल्यू ऑफ लैंड. जहां पे वैल्यू ऑफ लैंड इज मोर देन 1/3, तो वहां पे उन्हें 1/3 जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी डिडक्शन देनी पड़ेगी और केवल कंस्ट्रक्शन पे ही आप टैक्स लगा सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेरी मिस्टर ईशान मोंगा. No, you can't claim ITC in case of hotel. अच्छा, I think we reply yes. Mr. Ashwin Thakkar. Bank opt ITC reversal under section 17(4). In which column we have to show reversal of ITC in 4B1 or 4D2? 17(4) का रिवर्सल है जहां पे बैंक्स को ऑप्शन है 50% क्रेडिट रिवर्स करने का. आफ्टर अवेलिंग द इंटायर क्रेडिट वो नोशनली 50% क्रेडिट रिवर्स कर देते हैं, तो उनका 17(2) का जो रूल 42 और 43 में जो डिस्चार्ज करने की लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. तो इस रिवर्सल को आप रूल 40 जो अदर कैटेगरी है उसमें रिवर्सल को शो कर दें, दैट वुड बी सफाइस. एनीवेज अगर आप उसे 4B1 या 4B2 जहां पे भी आप रिवर्स करें, अगर आप रिवर्स कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट. ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट उसे कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है. बिल्कुल. और वो बेसिकली वही सिद्धांत जी अदर्स वाले कॉलम में ही जाएगा, क्योंकि अदर्स के अलावा जो कॉलम है उसमें स्पेसिफिक 42 43 लिखा हुआ है. सो वी ऑप्ट एवरीवेयर, वी ऑप्ट अदर्स कॉलम. इवन 17(5) वाला जो कॉलम 3B में दे रखा है उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो रिवर्सल नहीं है, दैट इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन. अब जब आप एनुअल रिटर्न बनाओगे तो आप जब 2A से रिकंसाइल करोगे, 2B से रिकंसाइल करोगे, तो आप उसमें फंसोगे. फिर आपको रिवर्सल अलग से दिखाना पड़ेगा जो आपका मैच नहीं करेगा 3B से. तो 3B तो अभी जीएसटी काउंसिल बात कर रही है कि चेंजेस लाए, तो आई थिंक ये बात उन तक जाए और ये वाला चेंजेस वो शायद कर दें. बट प्रैक्टिकली अभी 3B के कॉलम्स बड़े खराब हैं, जो इनके आपस के फॉर्म में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. एनुअल रिटर्न में भी फेस दैट इशू. राइट. हाँ, तो आपको अश्विन जी आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, आपको अदर्स वाले कॉलम में दिखाइए जो हमारे अकॉर्डिंग सजेशन है, सिद्धांत जी और मेरा. Then next query is from Ms. Sonia Devil. My company want to purchase electric car in Delhi but GST registration in Haryana. Can claim ITC in Haryana. You want to purchase electric car in Delhi but GST registration in Haryana. से डिपेंड करेगा एक तो वेरियस फैक्ट्स पे. पहली बात, आप 17(5) की एक्सक्लूजन्स को मीट आउट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तभी आपको कार का क्रेडिट मिलेगा. इफ यू आर एबल टू मीट आउट दैट, उसके बाद अगर डीलर हरियाणा में लोकेटेड है और रजिस्ट्रेशन भी गाड़ी का हरियाणा में ही है,
तो दे विल लेवी CGST एंड SGST, आपको दिल्ली में क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट आप एक इसमें आप एक बात कर सकते हैं डीलर से, प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड नहीं है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से। प्लेस ऑफ सप्लाई इज लिंक्ड विद वेयर द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज हैपनिंग। तो जनरल सिनारियो में तो शोरूम से जब आप गाड़ी बाहर निकालते हैं वहीं पे डिलीवरी आपको मिल जाती है। बट अगर आप ये कहते हैं कि मैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस परचेज करना चाहता हूँ, अपना दिल्ली का GSTN देता हूँ और आप इसको डिलीवर कराएं टिल दिल्ली, तो रजिस्ट्रेशन से उसका कोई लिंकेज नहीं आएगा। डीलर को IGST लेवाई करना चाहिए और आपको क्रेडिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप 17(5) की एक्सक्लूजन्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अंकित जी, इसमें अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें। बिल्कुल सिद्धांत जी, सेम थिंग है कि आप डीलर को डिक्लेरेशन दें कि दैट यू आर टेकिंग दिस कार टू द दिल्ली एंड यू गिव योर रजिस्ट्रेशन नंबर, बिकॉज एज पर द लॉ आल्सो इफ द गुड्स इज मूविंग टू अनदर स्टेट दे हैव टू चार्ज द IGST। जो हम बात करते हैं मतलब अगर हम अनरजिस्टर्ड से भी रजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स वो वहीं डिलीवर देता है, ओवर द काउंटर लेते हैं, बट स्टिल वी डिक्लेयर दैट, और उसे हम डिक्लेरेशन देते हैं कि हम इसे मूव करेंगे और हम उसका ई-वे बिल वगैरह चीजों को करते हैं प्रॉपरली, तो देन वी विल क्लेम द क्रेडिट। वो IGST चार्ज कर सकता है, कहीं कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और सेकंड थिंग सोनिया जी, इलेक्ट्रिक कार के ऊपर बाकी सारी फैसिलिटी है, अभी ITC का बेनिफिट इग्नोरिंग 17(5) गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ये भी सोच सकती है कि इसका बेनिफिट दे। मुझे इस क्वेरी को समझ के ये लगा कि इलेक्ट्रिक कार में ये मैं आपकी बात को काउंटर करूंगा। गवर्नमेंट इनफैक्ट इस पे रेट बढ़ा देगी जैसे ये प्रोमिनेंट हो गई ना। We have to give this suggestion to the government next in the ये क्रेडिट नहीं देंगे। आप देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक कार पॉपुलर हो जाएंगी ये उस पर रेट बढ़ा देंगे। रेट बढ़ा देंगे, राइट। 28% ही लेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। Right. Then Harmanjeet Singh again, developer वाली, as a developer do I have to charge deposit GST on share of property given to landowner? This has been answered. If yes, can I claim ITC for inward? Certainly you can claim ITC of the construction service provided to the landowner. इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप अपने रेस्पेक्ट पे अपना एरिया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आगे सेल करेंगे इंडिपेंडेंट बायर्स को, उस पे ITC नहीं है। बट जो आप लैंड ओनर के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, आपको पूरा ITC मिलेगा उसका। अश्विन जी की नेक्स्ट करिए। हाँ जी, an individual advocate having professional fee income more than 30 lakhs and some other income like bank interest, PPF interest, etc. Is he liable to register in GST? No other taxable income. It is a good query. 30 lakhs की उनकी professional income है, which is not, I would say, which is taxable, but in the hands of the recipient under reverse charge. अब इसमें मेरा एक क्वेरी रहेगा, अश्विन जी आप अगर क्लैरिफाई कर पाए इसे। इफ आई से कि जो मेरी प्रोफेशनल इनकम के बाद जो मैंने पैसा उसको सेविंग्स अकाउंट में अपने डाला है और उससे मुझे अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है और या मुझे PPF इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। वो पैसा बिजनेस से निकालने के बाद आइडल फंड्स को सेव किया हुआ पैसा है जिसमें मैं इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ। So in my humble opinion, that does not form part of supply. तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन हाँ, अब जैसे अगर हम डिस्कस करें कि आपकी 30 लाख की प्रोफेशनल इनकम है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आप उसे रेंट करते हैं, इवन 5 लाख इज द एनुअल रेंट, तो भी 5 लाख पे आपको GST देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेकर के, क्योंकि जो एग्जेम्पशन है वो अप टू 20 lakhs ऑफ टर्नओवर है और टर्नओवर आपका क्रॉस कर चुका है। अब आपकी अगर सारी सप्लाईज रिवर्स चार्ज में है तो सेक्शन 23 आपको एग्जेम्पशन देता है रजिस्ट्रेशन लेने से। इसके अलावा जो ये आपका बैंक इंटरेस्ट और PPF इंटरेस्ट है, मैं इसको मान रहा हूँ कि ये आपके हाथ में सप्लाई नहीं है, बिकॉज दिस मनी इज फ्रॉम आइडल फंड्स विच यू हैव टेकन आउट ऑफ द बिजनेस। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करोगे, कोई भी इनकम आएगी जो कि टैक्सेबल है GST में, तो आपको 1 रुपए पे भी GST देना होगा रजिस्ट्रेशन लेकर के। अंकित जी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें। हाँ, सिंपल यही है अश्विन जी की जो अभी आपकी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग प्राइमा फेसी he is not required to take a registration because all the services which he is providing is covered under the reverse charge and exempt supply की definition में वो cover होता है और accordingly registration के act के अंदर भी there is no requirement if taxable is not more, basically if aggregate turnover is exempt, if your aggregate turnover is exempt, so there is no registration required. So a prima facie there is no need of taking the registration.
and even we have discussed this advocate issue in the case of export also, because interstate services थी वो exports, तो उस केस में भी ओपिनियन यही है कि देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, और एडवोकेट पे बहुत सारी चीजें डिसाइडेड है, बहुत सारी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी, एग्जाम्पशन के अंदर बहुत सारी चीजें, तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है अश्विन जी। Next, he's asking freight or insurance. Right. Freight and insurance charge extra in sale invoice while generating e-invoice. Which HSN code required to be mentioned in invoice for freight? Sir, अगर आप freight और insurance charges along with sale of goods charge कर रहे हो, तो आपकी जो supply है वो उसकी principal supply sale of goods है। Goods का HSN ही mention होगा, goods का tax rate ही आपके freight और insurance charges पे लगेगा। और इनफैक्ट आपके इस क्वेरी को लॉ में एज एन एक्सप्लेनेशन, एज एन इलस्ट्रेशन कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन के नीचे दिया हुआ है, जहां पे वो कहते हैं कि फ्रेट और इंश्योरेंस विल बी टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सप्लाई। तो जो गुड्स हैं आपके उसी की तरह उसे टैक्स किया जाएगा। एचएसएन आपको सेपरेटली इसका मेंशन करने की जरूरत नहीं। रवि सद्यान जी पूछ रहे हैं, इफ एनजीओ रिसीव्ड फंड फ्रॉम द कंपनी एज ए सीएसआर एक्टिविटी फॉर एजुकेशन ऑफ द यंग पर्सन, इन दिस केस जीएसटी एप्लीकेबल ऑन एनजीओ और नॉट? सर्टेनली सर, ये थोड़ा सा बड़ा मिसकंसेप्शन है कई जगह पे कि अगर एक एनजीओ है वो एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, टू अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर रही है। देखिए, जीएसटी में इस तरीके की चैरिटेबल एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट नहीं है। जो चैरिटेबल एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट हैं वो स्पेसिफिकली लिस्टेड हैं अंडर द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। इनकम टैक्स की तरह हमारी चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन वाइड नहीं है, तो कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग उसमें नहीं कवर्ड है। तो आप जो भी चार्ज करेंगे, किसी और पार्टी से भी चार्ज करेंगे एज अ सीएसआर, क्योंकि आप जो सप्लाई दे रहे हैं वो टैक्सेबल है। कंसिडरेशन किसी से भी आए, ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ रियल एग्जाम्पल विच आई हैव डिस्कस्ड। एक सोसाइटी है विच इज इम्पार्टिंग सिविल सर्विसेज कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स। वहां पे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपनी फीस खुद बियर करते हैं जो कि सब्सिडाइज रेट पे होती है। कुछ स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज सीएसआर में स्पॉन्सर करती हैं। तो उस जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो सर्विसेज है कमर्शियल ट्रेनिंग कोचिंग की, वो टैक्सेबल है। इट इज इमटेरियल कि बच्चों को पढ़ाने की कंसिडरेशन बच्चों से खुद आ रही है या फ्रॉम एनी अदर पर्सन आ रही है। द एक्टिविटी इज टैक्सेबल एंड टैक्स हैज टू बी पेड। आगे का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो कंपनी सीएसआर में खर्चा कर रही है उसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, रवि जी वांट टू आस्क ऐड। हाँ जी, रवि प्लीज यू कैन आस्क। रवि सद्यान जी, you have raised your hand. जी प्लीज। हाँ जी सर, जी आवाज आ रही है? परफेक्ट, प्लीज आस्क। एक्चुअली सर, मेरे को क्या है कि मेरी एक एनजीओ है और मेरे को सीएसआर का ग्रांट मिलती है, और वो सीएसआर की ग्रांट की टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि मेरे को जो सर्विस देनी है वो सर्विस इस टाइप की होगी, डिजिटल स्किल प्रोवाइड करानी है मैंने को। डिजिटल स्किल प्रोवाइड करानी है किसको? एक बैकवर्ड एरिया में, बिहार में। राइट। अब सर जब आप ग्रांट बोल, हाँ नहीं, इसमें क्या है कि पूरा मैं एग्रीमेंट को रीड कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वो पार्टी, जो कंपनी है, कंपनी स्पेसिफिक मेंशन करी है कि ये सीएसआर का फंड है। राइट। और ये मेरी एनजीओ को रिसीव हो रहा है। और मैं बिहार में स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स करा रहा हूँ जिसमें उस कंपनी का लोगो भी यूज हो रहा है। ओके। तो ये इस केस में एनजीओ क्या बिजनेस माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा सर, बिल्कुल माना जाएगा। आप अगर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस भी देखें तो उसमें भी, वहां पे भी स्पेसिफिकली कवर्ड है। और क्या कहते हैं, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके बदले में जो आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो, दैट इज अ कंसिडरेशन फॉर द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय यू। और सामने वाली कंपनी के लिए भी क्विड प्रो क्वो है, उनका लोगो भी वहां पे लग रहा है। मैं कह रहा हूं अगर लोगो भी नहीं लगता तो भी उनका सीएसआर पर्पस फुलफिल होता। सो देयर इज अ क्विड प्रो क्वो विद बोथ द पार्टीज। एक को कुछ मिल रहा है अपॉन गिवन समथिंग इन रिटर्न। सो आप जो काम कर रहे हो, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो आप स्किल इम्पार्ट कर रहे हो, या तो आपकी स्किल कवर्ड है, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में ऐसा है नहीं क्योंकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो स्किल ट्रेनिंग होती है केवल वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कवर्ड है। तो इसका मतलब बाकी सारी स्किल ट्रेनिंग टैक्सेबल है पर से।
अब वो Yes, sir. टैक्सेबल है, आपको कंसिडरेशन किसी से भी आए, इन द फॉर्म ऑफ CSR आए या जिसको स्किल इम्पार्ट कर रहे हो उससे आए, इट इज इमटेरियल, आप पे GST लगेगा और उस कंपनी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, आप ये उनसे कह सकते हैं। सर इसमें एक चीज है कि बिजनेस जो हमारी डेफिनेशन है उसमें किस पॉइंट को मैं हाईलाइट करके ये डिस्कस कर सकता हूँ कि एक्चुअली क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन ट्रेड रहेगा, कॉमर्स रहेगा, प्रोफेशन रहेगा, ये वर्ड मेरे को एग्जैक्ट वो। रवि जी, ये जो बेसिकली इशू है ना, इसमें आप एक चीज समझिए, जो आप ठीक है चैरिटेबल कर रहे हैं, बट यू आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल टू द कंपनी विच इज डूइंग द CSR एक्टिविटी. यस सर. योर सर्विस रिसिपिएंट इज द CSR एक्टिविटी प्रोवाइडर. यस सर. सॉरी, रिसीवर CSR एक्टिविटी जो करा रहा है. सेकंड थिंग क्या है, जो जैसे सिद्धांत जी ने कहा, अगर आपकी जो NSDC वाली, आप नेशनल स्किल वाली जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप उसे अप्रूव करा लेते हैं और आप अप्रूव ट्रेनिंग पार्टनर हैं जी, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो सकती है. ओके. बट दैट इज अ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन. So with regard to that definition of the business, Siddhant is helping. Siddhant, please continue. जो सर रवि जी, जो बिजनेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में है, जो आप क्लॉज पढ़ रहे हैं, अगर उसको मैं आगे एक्सटेंड करूं तो वेजर और एनी अदर एक्टिविटी whether or not it is for a pecuniary benefit. Pecuniary benefit मतलब आपका प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, इट इज इमटेरियल. अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो उसके बदले में आपको कंसिडरेशन मिल रही है, चाहे आप कॉस्ट बेसिस पे कर रहे हो, चाहे आप चैरिटेबल बेसिस पे कर रहे हो, तो आपको वो बिजनेस में कवर हो जाएगी. और ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन भी नहीं. इसमें इन्होंने सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह सब लोगों को कवर कर रखा है. इसमें सर ये वर्ड एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी है या एनी अदर एक्टिविटी? एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी. तो आप देखो, जो आप काम कर रहे हो, जो ट्रेनिंग का काम कर रहे हो, वो फॉल कर जाएगा ना. जो एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स और प्रोफेशन इतना वाइड टर्म है कि जो आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो एज आप प्रोफेशनल कर रहे हो. और वेदर और नॉट फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट, आपका प्रॉफिट मोटिव है या नहीं, ये इमटेरियल है. डेफिनेशन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है. तो आपका बिजनेस के डेफिनेशन में आप फॉल कर जाओगे और कंसिडरेशन आपको किसी से भी आए. ओके सर, दैट इज इमटेरियल. Right. ओके सर, थैंक यू. Shanky, you want to ask? You have raised your hand. Shanky Goel. सर हो क्या मेरा डाउट क्लियर? Okay. सर एक डाउट और अभी लास्ट वाली जो क्वेरी थी उससे आया था कि जब फ्रेट का हमने चार्जेस लगाए और वो कंपोजिट सप्लाई काउंट हुई, Okay. तो उस केस में सपोज हमने मल्टी रेट सप्लाई करी थी जिसमें 5% की भी गुड्स थे और 12% की भी थे और दोनों इक्वल थे, तो उस केस में हम फ्रेट के लिए HSN किसका यूज करेंगे, 5% वाले का या 12% वाले का? आप उसे बाइफरकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, बाइफरकेट कर सकते हैं. हाँ, तो क्वांटम को बाइफरकेट. फ्रेट और इंश्योरेंस से, फ्रेट से आप कह रहे हो? हाँ, फ्रेट और इंश्योरेंस बाइफरकेट नहीं हो सकता. बाइफरकेट नहीं, फ्रेट हमने टोटल में चार्ज करा कि एक लमसम अमाउंट चार्ज कर लिया. तो आप एक रीजनेबल बेसिस पे, बेसिकली एरिया बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे आपको ट्रांसपोर्टर चार्ज कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, देखो इंश्योरेंस कंपनी तो जो प्रीमियम चार्ज करेगी वो स्पेसिफिक गुड्स का अलग अलग चार्ज करेगी ना. हाँ, फ्रेट का प्रोपोर्शनेट कर दो आप उसे, प्रोपोर्शनेट कर दो आप उसे. वरना सिद्धांत जी इसमें क्या है कि अगर सामने वाले को क्रेडिट मिल रहा है तो हम तो सजेस्ट हाँ, करते तो हैं प्रोपोर्शनेट का इशू है तो हायर रेट ले लो, क्यों लिटिगेशन में जाना है, उसने क्रेडिट मिल जाना है, आपने हायर रेट पे चार्ज कर लेना है. अगर B2C है देन यू शुड डू द प्लानिंग, यू शुड बाइफरकेट इट. अगर सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिल रहा, रियल एस्टेट वाला है, तो यू शुड हैव टू डू द प्लानिंग. अदरवाइज हायर रेट चार्ज करो, डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसी का HSN यूज कर लो, कोई इशू नहीं है. प्रैक्टिकल दिक्कत है ये, प्रैक्टिकल इशू है ये. ठीक है सर, बस ये था. और सर एक डाउट और था, जो हम GST में रिफंड लेते हैं वो किस सेक्शन में लेते हैं, मतलब 54 में कौन से वाले क्लॉज में? आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज का रिफंड ले रहे हैं. विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में हम कौन से, 54(3) मुझे उससे रिलेटेड एक डाउट. 54(3) सबसेक्शन 3. और इसमें ना एक इशू और आ रहा है, जो रूल्स है ना, रूल्स 4 जो है, 4A, 4B, 4C, 4D, उसके अंदर अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर वाली परचेज कर रहे हो और आप फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह आप सप्लाई कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको रिफंड अदर्स में क्लेम करना है. उसके ऊपर सर्कुलर आया हुआ है जो 125 सर्कुलर है. अब मुझे, हाँ,
अब मुझे है ना इससे रिलेटेड एक डाउट सर्टिफिकेशन के लिए इश्यू होता है। अब जब हम 89(2) का फर्स्ट प्रोविजो पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो एक्सक्लूड कर देता है, वहां पे सीए सर्टिफिकेट चाहिए नहीं 2 लाख से ऊपर भी अगर क्लॉज है तो वो एक मुझे लीगल बैकिंग नहीं मिलती कि सीए सर्टिफिकेट चाहिए 2 लाख से ऊपर है, क्योंकि जब हम 54 का 8 पढ़ते हैं उसका ई पार्ट बोलते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी सब वो एग्जाम्प्ट कर देता है फर्स्ट प्रोविजो का। रूल 89(2)M का फर्स्ट प्रोविजो है वो 54(8) के जितने भी बाकी सब क्लॉज है उसके सबको हटा देता है, सिर्फ ई को छोड़ता है। वहां पे मुझे कंफ्यूजन क्रिएट होती है एक। नहीं बिल्कुल, आप मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सपोर्ट के केस में आपको सीए सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है एज पर दी लॉ। आपको अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं प्रूव करना है। बट डिपार्टमेंट मांगता है। हाँ वो डिपार्टमेंट मांगता है, वो प्रॉब्लम है। वो आप काउंटर करो, आप तैयार रहो, शो कॉज। क्या होता है ना, आप डिपार्टमेंट को हम काउंटर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट दे करके मुझे रिफंड दे देता है। बट अगर आप लीगली चलो और काउंटर करो तो आपकी बात नहीं गलत है। रूल 89 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है जहां पे ये रिक्वायरमेंट है सीए सर्टिफिकेट की, कि 54(8) के ए बी सी और एफ में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका केस ए और बी में फॉल कर जाता है जीरो रेटेड सप्लाई में, और आपको ये सीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है जहां पे आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड सीक कर रहा है आपका क्लाइंट। सीए सर्टिफिकेट देने की इवन सिद्धांत जी जो सर्कुलर इशूड है ना 125/44 125/44 जो मास्टर सर्कुलर ऑफ द रिफंड है उसमें लिस्ट दी हुई है एनेक्सर ए। उस एनेक्सर ए में जब आप सीरियल नंबर 1 में जाएंगे वहां कहीं सीए सर्टिफिकेट नहीं है। डोंट वरी, आपको जरूरत ही नहीं है। वही एक कंफ्यूजन थी सर, जब भी डिपार्टमेंट जाओ हमेशा नहीं देखो मेरे पास, मैं अभी भी आपकी ये सेमिनार के बाद मुझे एक शो कॉज का रिप्लाई देना रिफंड को लेकर। व्हाट आई एम सेइंग, डोंट गिव अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड। वेट फॉर द शो कॉज नोटिस ना, उसे 60 दिन के अंदर शो कॉज देना ही है ना एक बार एक्नॉलेज करने के बाद। ही विल गिव इन द राइटिंग व्हाट द डॉक्यूमेंट इज मिसिंग। सो डोंट वरी, डोंट आप दो मत सर्टिफिकेट सर, हमसे डिस्कस करना, कोई जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट देने की। ठीक है सर, बस यही अभी तो सर्टिफिकेट जहाँ जरूरी है वहां भी सोच सोच के देना है इसीलिए सर पैकिंग पढ़नी पड़ी। थैंक यू शंकी भाई। आगे बढ़ते हैं सिद्धांत जी। अश्विन ठक्कर जी की है, कैन वी एक्सपोर्ट गुड्स विद आईजीएसटी अगेंस्ट इंपोर्ट विद एडवांस ऑथराइजेशन? नो। रूल 96 सब रूल 10 कवर्स यू। अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाए विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आपको अंडर एलयूटी ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी कोर्ट्स में लिटिगेशन पाइल्ड अप है इस इशू पे, जिन लोगों ने क्लेम कर लिया रिफंड और रिफंड उनको मिल भी गया है, अब डिपार्टमेंट क्या रिकवर कर रहा है। तो हम उसमें ये कह रहे हैं कि भैया रेवेन्यू न्यूट्रलिटी है, एक्सपोर्ट के केस में कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं हो सकती, दिस एंड दैट, बट डिपार्टमेंट ने उनको नोटिसेस इशू कर दिए हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल मत फॉलो करें। अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अमित गुप्ता जी इज आस्किंग, और उसके अदर एक्युमुलेशन ऑफ आईटीसी के केस में जो मैंने अदर्स वाला ऑप्शन बताया था वो उसके अंदर कवर होता है। मतलब आप नॉर्मल वाला एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट में भी नहीं जा सकते, उसके लिए अदर्स वाले ऑप्शन में आपको जाना है। वैसे वो अंकित जी, अब एक हाईकोर्ट के जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि इसमें कोई प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ डिपार्टमेंट अपने लेवल पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि 89(4) का नहीं है। मेरा एक क्लाइंट बड़ा परेशान हो रखा है जी, बेजर एक्सपोर्टर है, 600 करोड़ की टर्नओवर का एक्सपोर्टर है और उसे परेशान कर रखा है अदर्स वाली एप्लीकेशन। इतनी बेकार एप्लीकेशन है, डीआरसी से तो टैक्स काटना पड़ता है। तो हम तो खुद कह रहे हैं कि 89(4) को ही एप्लीकेबल कर दो, उसमें 2 कॉलम बना दो, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर और एक नॉर्मल एक्सपोर्टर। राइट नहीं, उस रूल की वैसे भी कोई इंसर्शन की जरूरत नहीं थी। मेरे को अभी तक उसका वो रीजन नहीं समझ आया कि उन्होंने स्पेशल अलग से क्यों ऐड कर रखा है, क्योंकि एनीवेज मेरे को रिफंड मिलता। दैट्स ओके, बट अब मैं अलग से डिस्कस करेंगे आप और मैं इसको। बाकी क्वेरीज लेते हैं। राइट, अमित जी इज आस्किंग, कैन सेस ऑन कोल बी टेकन एज रिफंड? हाँ, कोल का सेस बिल्कुल रिफंड पे मिल सकता है अगर आपका मैन्युफैक्चरर है वो कोल यूज कर रहा है या फिर वो गुड्स यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर सेस लग के आ रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो उसके अंदर आपका जो क्लैरिफिकेशन भी आई हुई है सर्कुलर के द्वारा कि सेस का आप रिफंड ले सकते हैं और वो सेस का रिफंड आपको, बट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो विद पेमेंट ऑफ
IGST है, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे उसमें मिलेगा नहीं, इन्वर्टेड ड्यूटी पे मिलेगा नहीं सेस का रिफंड। आपको जो सेस का रिफंड मिल सकता है अगर आप एक्सपोर्ट विद LUT कर रहे हैं तो आपका लीगलिटी में रिफंड आप ले सकते हैं। हालांकि मैं इससे लिटिगेट करता हूं कि एक जगह सिर्फ एक सिस्टम के चलते आप एक जगह रिफंड दे रहे हो, एक जगह नहीं दे रहे, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो अभी जो हमने देखा है, आप LUT के अंदर अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका रिफंड ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और even सर्कुलर आप नंबर circular सर? भी, हाँ जी, 125 125 मास्टर सर्कुलर के अंदर कवर है। ओके। ये बेसिकली जो भी मैंने रिफंड्स में डील कर रहे हैं सबको पता होता है। सुमित जी, जो मैंने पहले स्लाइड रिफंड वाली सेमिनार ली थी उसके अंदर, वेबिनार के अंदर, मैंने नीचे ना स्लाइड में सर्कुलर की लिस्ट लगा रखी है पूरी। 125 है, उसके बाद 131 है, 135 है, 139 है, तो रिफंड के ऊपर सर्कुलर की लाइन लगी हुई है। तो आप उसे शेयर कर दीजिए, श्योर आप उस पे वॉच कर सकते हैं, आराम से आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जी। Sir, if ITC for Jan 2021 is used in September 2021 and September 2021 GSTR 3B filed in December 2021, GST department issued notice and disallow ITC, correct or not? देखिए 16(4) को तो आप वायोलेट कर गए हैं सिचुएशन में। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपका जो लैप्स है दैट इज अ प्रोसीजरल लैप्स और अ सब्सटैंटिव लैप्स, ये लिटिगेट आपको करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा, वो यही रिवर्सल प्रपोज करेगा, आपको लिटिगेट करना पड़ेगा दैट आई हैव सैटिस्फाइड ऑल दी सब्सटैंटिव कंडीशंस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 व्हिच आर overriding all the other subsections, which are basically notwithstanding all the other subsections. तो ये मैटर ऑलरेडी सेक्शन 16(4) की जो टाइम लिमिट है जिसको आप रेफर कर रहे हो सितंबर 2021, ये ऑलरेडी चैलेंज्ड है बिफोर द कोर्ट्स। वी हैव नॉट सीन एनी डिसीजन टिल डेट फाइनल, पर आप इसको लिटिगेट कर सकते हैं। बट 16(4) बड़ा क्लियर है, मैं इसमें मतलब एक आपकी जो क्वेरी है 16(4) बड़ा क्लियर है कि ड्यू डेट तक ही मिलेगा, यानी कि 20 अक्टूबर। और जो अब करंट फाइनेंस एक्ट 2022 आया है उसमें उसे 30 नवंबर कर दिया है, बट वो अभी इन फोर्स नहीं है, इट इज पेंडिंग टू बी ब्रॉट इन फोर्स। जब काउंसिल नोटिफाई करेगा तब वो डेट एक्सटेंड हो जाएगी। और इवन जो हम डिस्कस करते हैं सिद्धांत जी की 2A वाली लिटिगेशन आ रही है, ये भी लिटिगेशन काफी ज्यादा आ रही है। राइट। और इसमें लॉ क्लियर है, इसमें लॉ में कोई चेंजेस गवर्नमेंट ने नहीं करे हैं जिसकी हम लीगल बैकिंग ले पाए। लीगल बैकिंग हम ले सकते हैं राइट टू क्लेम द ITC की, जो कोर्ट्स की जजमेंट को हम फेवर में ले सकते हैं, बट वो हाई कोर्ट पे जाके ही, जो हम लोग मानते हैं कि हाई कोर्ट पे जाके ही इसका रिलीफ मिल पाएगा, उससे पहले नहीं लगता कि इसका रिलीफ मिलेगा। इसमें आशुतोष जी आप अगर जब ग्राउंड लेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राउंड आप लीजिएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो क्रेडिट मैंने क्लेम किया हुआ है वो विद इन टाइम था, केवल रिटर्न में रिपोर्टिंग करते वक्त मुझसे डिले हुआ है। ये एक इशू है कि क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट में लिया जाता है या रिटर्न जब GSTR 3B में मैं पंच करता हूं तब लिया जाता है। मेरा ये मानना है कि मैं क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लेम करता हूँ, 3B में मैं उसे केवल डिक्लेयर करता हूँ डिपार्टमेंट को या रिपोर्ट करता हूँ। तो ये एक ग्राउंड हम ले सकते हैं। सर्विस टैक्स में ये इशू को ट्रिब्यूनल ने, मे बी इट वाज सम साउथ इंडिया का ट्रिब्यूनल था, सीस्टैट चेन्नई, जहां पे उन्होंने कहा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट लेते हो, ST3 में केवल उसे रिपोर्ट करते हो टू द डिपार्टमेंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम मिस्टर पंकज कुमार, इज GST एप्लीकेबल ऑन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज गिवन टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन? नो, ये एग्जेम्पशन है अंडर 12/2017। अगर GTA कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट है। Can we take refund of input under section 54 for a trader under inverted duty structure? सर ये CBIC ने तो आपको मना कर दिया है, बड़ा क्लियर है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो लॉ की इंटेंट है वो उनको मैन्युफैक्चरर्स को ही देने की है। और अगर मैं कंसिडर करूं VKC फुटस्टेप्स का जो सुप्रीम कोर्ट में होल्ड हुआ और उन्होंने भी इंटेंट को एम्फेसाइज किया और ये कहा कि इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड नहीं मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी नहीं मिलेगा, तो ये लिटिगेशन तो जरूर रहेगी कि एज अ ट्रेडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑलरेडी कोर्ट्स में है जहां पे रेट सब्सिक्वेंटली रिड्यूस हो गया, बट आई वुड से इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दिस लिटिगेशन, अगर आप उसे किसी और तरीके से यूटिलाइज कर पाए दैट वुड बी मच बेटर। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एटलीस्ट रिफंड अब फाइल करें, उसे लड़ते रहें, एंड इफ द कोर्ट्स विल फेवर यू तो आपको ये रिफंड मिल जाएगा। इस GST अविश जी की क्वेरी है, फायर अकर्ड ऑन 30th 3/2022 and a stock and fixed asset lost, whether GST has to be reversed on the insurance claim or actual claim allowed. If claim not settled on the date of the balance sheet, what will be the situation? And in 3B, input has to be reversed separate.
or existing input to be reversed? देखिए, जो आपको इसका मैं ये कहूंगा कि क्लेम से कोई लिंक नहीं है। जो आपके पास स्टॉक आपके पास इन हैंड था उस दिन, जिस दिन फायर अकर हुई, उसका आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा जो आपने परचेज पे क्लेम किया था, और वो आपकी सर्वे रिपोर्ट में भी होगा। क्लेम आपको कितना मिला नहीं मिला, दैट इज नॉट टू बी लिंक्ड इनटू। आपको एक्चुअल परचेज वैल्यू देखनी है और उस पे जो आपने आईटीसी लिया है उसको आपको रिवर्स करना है, और इस कॉस्ट को आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसी। बिल्कुल 17.5 के अकॉर्डिंग आपको रिवर्स तो करना हाँ, ही रिवर्स करना पड़ेगा जी। रिवर्सल ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स इन केस ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई। सर ये तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन 42-43 पूरी सेमिनार लेनी पड़ेगी सर उसके ऊपर। हाँ जी, इस पे आई थिंक रिकॉर्डेड सेशन हमारा है रिवर्सल, हाँ। आप देखेंगे ना टीम कासा चैनल पर, तो फुल रिकॉर्डेड सेशन और अवेलेबल। वैसे सिंपल है, सिंपल प्रोपोर्शनेट आप टर्नओवर के अकॉर्डिंग इनपुट्स को रिवर्स करेंगे, और जो कैपिटल गुड्स पे भी आ रहा है उसकी एक पूरी कैलकुलेशन है 5% पर क्वार्टर, और उसे भी आप प्रोपोर्शनेट आप रिवर्स करेंगे। तो सिंपल ये है रूल 42-43। बाकी आप सेशन देख सकते हैं। Fixed assets sold by proprietor to private limited company where proprietor is director, ITC reversal provision of proprietor firm। अजीत जी, अगर आप इस क्वेरी को इलाबोरेट कर पाए, वैसे तो अगर केवल फिक्स एसेट सेल किए हैं बाय प्रोप्राइटर टू प्राइवेट लिमिटेड, टैक्स पे करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बट अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है अलोंग विद ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो वहां पे लॉ में एग्जेम्पशन है। I cannot get your query from the limited lines you have written। अश्विन जी की क्वेरी ले लेते हैं तब तक। बट ड्यू टू एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट इनकम शोन बाय बैंक इन 3B, एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट, सर एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट इनकम शोन बाय बैंक इन 3B वो उनकी इनकम है जो कि वो लोन पे अर्न कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन वो एडवोकेट वाले केस से लिंक्ड है, जहां पे कि एडवोकेट इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। वहां पे एडवोकेट ने बैंक को डिपॉजिट एडवांस किया है अपने सेविंग्स अकाउंट में, और उसको इन लिeu ऑफ दैट इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो आप केस डिस्कस कर रहे हैं जहां पे बैंक इंटरेस्ट इनकम अपनी 3B में रिपोर्ट कर रहा है, वो इनकम उसकी टोटली एग्जेम्प्ट है, वो जो उसने आगे लोन दे रखा है आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके। ये दो अलग अलग सप्लाई है। सिद्धांत जी, एक शायद क्वेरी अश्विन जी की वो भी थी ना कि जो बैंक एक फिक्स परसेंटेज पे रिवर्स कर रहा है, शायद उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको, इनकी क्वेरी एक एडवोकेट वाली थी ना। एक क्वेरी थी ना जो 50% रिवर्स करना है। सर देखिए, मेरे हिसाब से अदर रिवर्सल में ही आपको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 42-43 में एक्चुअल बेसिस पे रिवर्सल होता है जो प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला है। इसलिए आपको, अगर आप 50% के ऑप्शन में है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स उसी ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अदर्स में ही रिवर्सल करना चाहिए, एंड दैट विल बी सफिशिएंट, इट विल बी कंसीडर्ड बाय द डिपार्टमेंट। आई कैन नॉट फोर्स कि डिपार्टमेंट इसमें इशू कोई क्रिएट करेगा। इतना तो डिपार्टमेंट भी समझता है कि क्रेडिट लेकर के अगर 50% रिवर्स किया है, देन इट इज सफिशिएंट। चाहे आपने वो ऊपर डिक्लेयर किया या नीचे डिक्लेयर किया, डज नॉट मैटर। और अश्विन जी, अभी तो इतनी नॉलेज डिपार्टमेंट को वैसे भी नहीं है, और प्रैक्टिकली उन्हें टोटलिटी में रिवर्सल चाहिए। बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं जिसमें इवन 3B में भी रिवर्सल्स करे हैं, वो भी कंसीडर हो रहे हैं। अगर ITC रिवर्स कर दिया गया है तो दैट हैज नॉट बीन लिटिगेटेड बाय द डिपार्टमेंट, और एज पर द लॉ आल्सो इट इज नॉट एज पर रूल 42-43 द रिवर्सल इज गोइंग ऑन। अमित जी की क्वेरी ले लेते हैं। सिद्धांत जी, द रिवर्सल ऑफ इनपुट इन केस ऑफ MEIS एंड SEIS लाइसेंस सेल। अमित जी, MEIS एंड SEIS license is exempt services, it is nil rated basically, I say, not exempted. So according to the law it is covered in the exempt supply, and आपको proportionate reverse करना चाहिए common credits का, जो रूल 42-43 के अकॉर्डिंग बनता है। सिद्धांत जी, अगर कुछ आपने बिल्कुल एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है ये, और आपको रिवर्सल क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में। Anuj ji, I have supplied goods from Delhi to Assam with e-way bill in May 22. Now buyers say they provide us wrong GSTN. Now what want us to issue new invoice with correct GSTN? My concern is if I issue credit note and issue fresh invoice does not have e-way bill through which goods should have been sent. Basically, as per my opinion, you can issue the credit note considering this factor, but credit note भी ना आपको ITC रिवर्सल जब भी अलाउ करता है जब स्पेसिफिक रीजंस होने चाहिए। That would be linked basically आपका
गुड्स रिवर्सल हो, रेट रिडक्शन हो, तो वो उस सब में आपको कवर करना पड़ेगा। ई वे बिल तो मूवमेंट्स के लिए है, मूवमेंट ऑफ गुड के लिए है, बट उसमें प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि जीएसटी नंबर उसका गलत है पार्टी का, तो उसे क्रेडिट मिलने में क्रेडिट नहीं काफी मिलेगा, दिक्कत तो आएगी। तो अब आपको हम इस पोर्टल पे सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप उसका क्रेडिट नोट बनाएं, गाड़ी नंबर डालें, फिर नया गाड़ी नंबर डालें, फिर उसका इनवॉइस बनाएं। नहीं अंकित जी, इसमें क्या कर सकते हैं ना कि वी कैन, आई अंडरस्टैंड कि वो ई वे बिल में गलत चला गया है, इनवॉइस नंबर गया है, जीएसटीएन गलत चला गया है। देखिए ई वे बिल इज लिंक टू मूवमेंट, मूवमेंट कंप्लीट हो गई है, कोई इशू नहीं है। अब जो इनवॉइस पे गलत जीएसटीएन है, आप उसको रिवाइज डॉक्यूमेंट दीजिए और आप अपने जीएसटीएन पोर्टल पे जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल करी है गलत जीएसटीएन से, उसे अमेंड कर दीजिए और एक इस गलती को रिकॉर्ड कर लीजिए, एक पेपर पे साइन करके अपनी फाइल में रख लीजिए, ताकि कल को डिपार्टमेंट कुछ कहता है तो वी कैन से इट इज नॉट एन आफ्टर थॉट, एक्चुअल गलती थी, मेरा बायर असम में ही बैठा है बट उसने जीएसटीआईएन गलत इश्यू मेरे को दे दिया है। तो दिस कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सबमिशन। आप बस रिकॉर्ड करके अपनी फाइल में रख लें और अमेंडमेंट कर लें इंस्टेड ऑफ इशूइंग क्रेडिट नोट। जैसे कि अंकित जी ने कहा, अंडर सेक्शन 34 बड़े ही लिमिटेड सिनेरियोज में हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं और इस मिस्टेक को हम क्रेडिट नोट में नहीं कवर कर सकते। सिद्धांत जी प्रैक्टिकल इशू पता है हाँ, प्रैक्टिकली अभी क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट ना ई वे बिल मांग रहा है। अभी जो इनका बायर है ना, कल को उसको दिक्कत आ सकती है जो डिपार्टमेंट कर रहा है, एज पर द लॉ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन भी आई है कि सर अनुज जी, हाँ अनुज जी हैंड रेज कर रहे हैं, वो उसमें ऐड ऑन करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। सर क्वेश्चन ये है कि आई विल बी ओनली क्रिस्प हियर, मैं एक इनवॉइस रेज कर चुका हूँ जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि क्रेडिट नोट रेज कर दूंगा। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट, ई वे बिल इज एन इवेंट, ठीक है। अब इनवॉइस मैंने रेज किया जिस जीएसटीएन पे, ई वे बिल उसी जीएसटीएन पे गया है। आज मैं क्रेडिट नोट रेज करके कहता हूँ कि वो इनवॉइस नहीं एग्जिस्ट करता बट ई वे बिल एग्जिस्ट करता है। नया इनवॉइस जो है उसके साथ कोई ई वे बिल नहीं होगा, मतलब आज इनवॉइस हो रहा है पर माल गया जाने का कोई इवेंट नहीं हुआ, पहले माल गया उसका कोई इनवॉइस नहीं हुआ क्योंकि क्रेडिट नोट से मैंने खत्म कर दिया। हाँ अनुज जी बिल्कुल, इसीलिए अंकित जी मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट एक्सरसाइज कि आप क्रेडिट नोट इशू करो और नया इनवॉइस इशू करो जिसके लिए कोई ई वे बिल नहीं होगा। अब मैं ये कहता हूँ जेन्युइन मिस्टेक है, जेन्युइन मिस्टेक में कोई मेरे को जियोपार्डाइज नहीं कर सकता। मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, मैं इनवॉइस को इसी नंबर, ये जो इनवॉइस नंबर है और जिस डेट का है, मैं केवल जीएसटीआईएन उस पे अमेंड करके पार्टी को फिजिकल कॉपी देता हूँ और अपनी जीएसटीआर 1 में मैं उसे जीएसटीएन को अमेंड करता हूँ। ई वे बिल में वो नहीं अमेंडमेंट हो पाएगी, गलती हो गई है। बट दिस डज नॉट मीन कि डिपार्टमेंट कैन क्रिएट एनी डिमांड अगेंस्ट मी। एक जेन्युइन गलती है, उसको सबमिट करेंगे, बट क्रेडिट नोट वाली एक्सरसाइज में जाएंगे तो वो प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट कई सारे एलिगेशन लगा सकता है सेकंड इनवॉइस पे कि भाई आपने गुड सप्लाई ही नहीं किए, केवल इनवॉइस बना के छोड़ दिया, तो वो बड़ा एक मेजर रिपरकशन। एग्जैक्टली, तो यू शुड डू अमेंडमेंट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, और आप इसको रिकॉर्ड करके अपनी एक फाइल में लगा लो। सर कुछ इसके लिए गाइडेंस मिल सकती है, इसका रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करें जो लेजिबल और अथॉरिटी के साथ उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा जीएसटीएन किसका डाला अनुज जी? सेम पार्टी है या बिल्कुल ही अलग है? जिस पार्टी का है उसी का ही असम में किसी और जगह का जीएसटी दे दिया तो फिर ठीक है, सेम पैन डिस्टिंक्ट पर्सन। अनुज जी एक काम नहीं कर सकते आप? एक काम ये कर सकते हो ना, आप उसको जो इनवॉइस है उसको इनवॉइस आप बेसिकली जो आपने उसको इनवॉइस रेस करा उसे बोलो कि वहां अपनी पार्टी को रेस कर दे। क्यों इतनी एक्सरसाइज आपसे करा रहा है? सर उसमें आप टेक्निकली करेक्ट कह रहे हैं, मैंने ये सजेस्ट भी कर दिया था, बट वो प्रैक्टिकली ये है कि वो मेरे से कम 10,000 गुना बड़ा साइज का मेरा। कोई बात नहीं, तो फिर जो सिद्धांत जी कह रहे हैं उसी पे जाइए। जब सेम पार्टी है तो आपको इतनी दिक्कत आएगी भी नहीं। हाँ, इतनी दिक्कत आएगी भी नहीं अगर सेम पार्टी का जीएसटी है। आप पार्टी से कॉरेस्पॉन्डेंस ले लो कि ऐसे उन्होंने गलती की थी और अब वो इसको रेक्टिफाई करा रहे हैं, कोई इशू नहीं होगा सर। तो जीएसटी आप अमेंडमेंट करो। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा था, जीएसटीआर 1 में जीएसटी अमेंडमेंट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर, अभी मई 22 का इनवॉइस है, आपकी अमेंडमेंट सितंबर 23 तक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अगली रिटर्न में कर दो उसे। ठीक सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, प्लीज अमित जी की परचेज क्राइटेरिया इन रेरा कंपनीज रियल एस्टेट। आई थिंक वो जो हमने कहा था कि भाई रजिस्टर्ड परचेज क्राइटेरिया, हाँ बेसिकली उसमें है कि 80% आपकी जो प्रोक्योरमेंट है दैट शुड बी फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर नहीं है तो आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे करना है। और सीमेंट के लिए वो 100% लिमिट है, तो उसके लिए स्पेसिफिक आंचल कपूर जी का हमारा एक रिकॉर्डेड
पूरा रियल एस्टेट के ऊपर सेशन है, तो आप डिटेल में समझने के लिए उसे एक बार व्यू कर लीजिएगा। और बट ये मतलब इन अ ब्रीफ आई एम सेइंग कि दैट सीमेंट पे 100%, अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से सीमेंट परचेज किया है और यू आर अ डेवलपर, देन यू हैव टू पे द GST ऑन दैट अनरजिस्टर्ड परचेज एट द रेट ऑफ 28%। तो वो आपको पे करना ही है, और वो भी मंथली बेसिस पे है। जो 80% वाला है वो ईयरली देखना है आपको। So you have to go through with the detail according to me for getting the complete clarification. Sir, is GST applicable in case of swimming pool सर activity? अश्विन जी की बीच में हैंड रेज है, एक बार अगर उनको। Ashwin ji, you want to ask right now? Yeah, later on. I think अश्विन जी काफी एक्टिव रहे हैं पूरे सेशन में। right. He is always active in our earlier sessions also. अश्विन जी तो जितने भी हमारे सेशन में अश्विन जी ने जरूर ज्वाइन किया है, and really appreciable for. अश्विन जी तो बिल्कुल हमारे अच्छे व्यूअर हैं। Sir, is GST is applicable in case of swimming pool activity? I say yes. Where is the doubt कि that swimming pool activity पे Yes, GST नहीं है it's- applicable? बस ये GST सोचिए गवर्नमेंट ने सांस लेने पे नहीं लगाया है। So if you say कि GST applicable नहीं है, तो आपको 12/2017 में जाना पड़ेगा। क्यों सुमित जी और सिद्धांत जी, और उसके अलावा तो चीजें बचती नहीं है, शेड्यूल 3 में जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर, और अब आई वुड से एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन भी आपको बड़ा स्ट्रिक्टली रीड करना चाहिए। बहुत उसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2018 की दिलीप कुमार एंड कंपनी की, उसकी वजह से डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया व्हेन यू आर अवेलिंग एग्जेम्पशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सेज कि एनी एम्बिग्विटी इन द नोटिफिकेशन विल गो इन फेवर ऑफ रेवेन्यू, और जो पर्सन एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है उसको प्रूव करना है, ओनस उसके ऊपर है कि उसका जो केस है वो 4 पैरामीटर्स 4 कॉर्नर्स ऑफ द नोटिफिकेशन में फॉल करता है। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर कि एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, आप एक्सपर्ट कंसल्टेशन लें, जो जैसे भी आप उसको रिजॉल्व करें, बट एग्जेम्पशन लेने से पहले जरूर एक बार उसको एनालाइज करें। सर्कुलर नो फॉर सेस 125/44/2019, और ये ना सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये मास्टर सर्कुलर है जी रिफंड का। मतलब रिफंड में कहीं भी फंसे, सबसे पहले इससे चालू करें, फिर नीचे 131, फिर 135, उसे देखते चले, आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाए। राइट। सर पराग जी ने आपसे पूछा है कि ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं ऑनलाइन। ये अंकित जी आपको अभी एट द एंड ऑफ द सेशन में बताना। हाँ जी जी। प्रीति मित्तल जी, in the case of commission income, billing is the place of supply matters in spite of GST and of recipient of service if the commission is for hotel membership। आप इंटरमीडियरी की बात कर रही हैं, अगर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों इंडिया में हैं तो इंटरमीडियरी के रिस्पेक्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका जो जिसको आप बिलिंग कर रहे हैं उसका GSTN सेपरेट स्टेट में है तो IGST होगा, नहीं तो सेम स्टेट में है तो C और S होगा। ये कमीशन वाला जो मॉडल है, केवल जो डिस्टिंक्शन है वो तब आता है जब इंटरमीडियरी फॉरेन एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंडियन इंटरमीडियरी, या फॉरेन इंटरमीडियरी इंडियन एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब दोनों में से, सर्विस प्रोवाइडर और रेसिपिएंट में से कोई एक पर्सन आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, वहां पे 13(8) प्रोविजन है जो कि ये कहता है कि इंटरमीडियरी की प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इंटरमीडियरी मानी जाएगी। अगर आप अपने क्वेश्चन, हाँ राइट, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सर। इस पे कभी वेलकम एडवांस रूलिंग भी आई है, आज ही मैं देख रहा था। सिद्धांत जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस आ रही है। मैं जस्ट ये कन्वे कर रहा था, फॉरेन इंटरमीडियरी के केस में अभी एक वेलकम एडवांस रूलिंग है। बहुत कम एडवांस रूलिंग्स होती हैं जो कि फेवरेबल होती हैं एसएससी के। वहां पे एक फॉरेन इंटरमीडियरी ने एक इंडियन एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करी, तो एडवांस रूलिंग में वेरी वेल इट हैज सेड कि ये टैक्सेबल नहीं है बिकॉज सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया बिकॉज ही इज एन इंटरमीडियरी, सो टैक्स विल नॉट बी लेविएबल, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं क्वालिफाई होगा। Then Mr. Manoj की query, can we have additional trade name for same line of activity? बिल्कुल सर, ये अभी CBIC ने भी clarify किया है इसको, as a in the same GST number you can have a different trade name. Even registration में भी amendment allow कर दी, amendment allow कर दिया, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। GST paid on RCM basis। पीछे प्रॉब्लम आती थी कि अभी 2 महीने पहले मेरे पास एक क्वेरी थी, एक कंपनी के 3 ट्रेड नेम से बिजनेस हो रहा था,
तो ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, बट राइट नाउ वी हैव द ऑप्शन, यू कैन गो फॉर द डिफरेंट ट्रेड नेम्स फॉर सेम लाइन ऑफ बिजनेस। राइट, ये बैंक अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम आती थी, वो कहते थे जीएसटी सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा हुआ है हम उसी हिसाब से हाँ, देंगे, वो अकाउंट बहुत ओपन सारे- करेंगे, वो सब प्रॉब्लम थी। सोनी जीएसटी जी पेड ऑन, सोनी जी की क्वेरी है ना सर, प्लीज गाइड वेदर द सेल ऑफ ग्रीन स्टैंडिंग ट्रीज विल बी अंकित जी बीच में कुछ क्वेरीज हाँ, बीच मिस में हो रह गई गई सर। अंकित जी, आप बीच में कुछ करिए। जी सिद्धांत जी। ईशान जी की क्वेरी है, जीएसटी पेड ऑन आरसीएम बेसिस ऑन फ्रेट चार्जेस एट 5% वी कैन एब्सोल्युटली यू कैन टेक जीएसटी क्रेडिट। ये कई बार क्वेरी आती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। एज अ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप 5% आरसीएम में टैक्स पे करें या आपका जीटीए 12% में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, दोनों केसेस में एज अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आपको क्रेडिट मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन जीटीए के ऊपर है कि अगर उसका टैक्स रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट देता है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। एज अ रेसिपिएंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको क्रेडिट दोनों ही केसेस में मिलेगा। मुझे एक सोनी पाल जी की क्वेरी रह गई है मनोज जी की क्वेरी से ऊपर। अच्छा सर प्लीज अच्छा। गाइड वेदर द सेल ऑफ द ग्रीन स्टैंडिंग ट्रीज विल बी क्लासिफाइड एज अ सेल ऑफ लाइफ प्लांट और अ सेल ऑफ टिम्बर लॉग, प्लीज क्लैरिफाई। आई थिंक उन्होंने आपको चैट में डाली है, वो नहीं, कॉमन ग्रुप पे नहीं। हमें नहीं शो हो रही। हाँ नहीं, बेसिकली सोनी जी मेरे अकॉर्डिंग तो जो सेल ऑफ लाइफ प्लांट, जब आप ही अपनी क्वेरी का आंसर दे रहे हैं कि सेल ऑफ ग्रीन स्टैंडिंग ट्री, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेल ऑफ लाइफ प्लांट ही माना जाएगा। अगर आप खेत के अंदर ही उसे बेच रहे हैं, अगर मैं कहूँ जंगल बेच रहा है कोई, तो सेल ऑफ लाइफ प्लांट माना जाएगा, और वो काट के उसके लॉग बना के बेच रहा है तो टिम्बर लॉग माना जाएगा। सो दिस डिपेंड ऑन द फैक्ट्स, यू हैव टू चेक द फैक्ट्स। अगर वो खेत बेच रहे हैं, लाइफ प्लांट तो जो जिंदा प्लांट है जिसके ऊपर चीजें हो सकती हैं, मतलब वो प्लांट चल सकता है आगे, उसे ही लाइफ प्लांट मानेंगे, जो मैं समझ पा रहा हूँ। सिद्धांत जी आप प्लीज ऐड करना। फैक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्लासिफिकेशन के इशू को थोड़ा सा इस तरीके से कन्वे करना मुश्किल होता है, बिकॉज क्लासिफिकेशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी फास्ट सब्जेक्ट। बट फॉर दिस क्वेरी आई ऑल्सो अग्री विद अंकित जी कि लाइव प्लांट की अगर क्लासिफिकेशन अलग से है तो जो पेड़ लगा हुआ है, जिंदा पेड़ है, उस पे लाइव प्लांट में क्लासिफिकेशन। पंकज जी की क्वेरी है, सेल ऑफ कार टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन विच नो ITC is taken, then how to charge GST on the car? सर नोटिफिकेशन 8/2018, अगर आपने कार की परचेज पे क्रेडिट नहीं लिया था तो आप उस कार की WDV निकालेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑन टुडेज डेट, और उसके बाद आपका जो सेल प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं अगर वो एक्सीड करता है WDV से तो केवल मार्जिन पे आपको टैक्स देना है। टैक्स का जो रेट है वो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंजन, अगर 1500 सीसी से ऊपर की डीजल गाड़ी है तो 18% और नीचे की गाड़ी पे 12%। पेट्रोल के केस में 1200 सीसी इज द डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया। और अगर आप WDV से लोअर वैल्यू पे बेचते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना आपने। ये तभी आपको नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर आपने क्रेडिट परचेज पे नहीं लिया है। सर इसका इनवॉइस कैसे इशू होगा? इनवॉइस सर आप ऐसे होगा कि सेल कंसिडरेशन तो आप एक्चुअल मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 लाख, बट नीचे सब हेड में लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपीस। फॉर एग्जांपल अगर 4 लाख की WDV थी और आप 5 लाख की बेच रहे हैं तो टैक्सेबल वैल्यू आप इनर कॉलम में लिखें 1 लाख रुपीस और टैक्स उसी पे कंप्यूट करें। टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू आएगी वो आएगी 5,18,000। आई होप यू हैव गॉट मी। और नोटिफिकेशन का नंबर डाल सकते हैं, कोई इशू हाँ, नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर डाल दें आप। सर नोटिफिकेशन नंबर रिपीट करना एक बारी। 808/2018 सेंट्रल टैक्स रेट। ओके, मार्जिनल रिलीफ नोटिफिकेशन है ये, आपको आराम तो से सर वो ITC क्लेम कर सकते हैं? सर वो डिपेंड करेगा, उसको सेटिस्फाई करनी है कंडीशन की 17(5) में वो एक्सक्लूजन में फॉल अगर कर रहा है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा इन द कोर्स। अगर वो डीलर है गाड़ियों का तो उसे क्रेडिट मिल जाएगा। तो सर ये GST आप कितना बता रहे थे इसमें, जो मार्जिनल है उस पे चार्ज कर? सर आपकी गाड़ी की डीजल है पेट्रोल है? डीजल है सर। और सीसी कितनी है? सीसी तो कम ही है सर, उसमें 12% अगर 1500 सीसी से कम है तो सर 12% टैक्स है। हाँ जी। तो आप ये सर कहते हैं ना 5,18,000 चार्ज करना। हाँ तो 12,000, 5,12,000 वो मैं एग्जांपल ले रहा था। पैसे तो पूरे लेंगे ना पंकज जी। हाँ जी। GST सिर्फ आप 1 लाख पे लगाएंगे, वो जो भी रेट है आपका 12%। नहीं वो ये कह रहे हैं कि मैंने 18,000 फॉर एग्जांपल यू हैव एडेड कैलकुलेशन एरर थी, 5,12,000 ही है जी। नहीं सर 5,12,000 उनसे पूरे कंप्लीट ही लेने हैं वहां से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। हाँ
अंकित जी आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास कई क्वेरी हाँ हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी, 15 sir, क्वेरी in अभी पेंडिंग case है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। can we Paras- take ITC where security agency has passed the ITC in its GSTR1 where the agency is firm? अच्छा, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सप्लाई है सिक्योरिटी सर्विसेज की, अगर वो पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है, बट आपसे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स चार्ज कर दिया गया। सर कोई इशू नहीं है, सेटल्ड केस है ये, मतलब अप टिल ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट्स भी इसे कंफर्म कर चुके हैं कि अगर टैक्स रिवर्स चार्ज में पेबल था बट फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज कर दिया और गवर्नमेंट को चला गया तो कोई इशू नहीं है, रिवर्स चार्ज में फिर से डिमांड नहीं की जा सकती, डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती और आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेरी है, जीएसटी प्रोफेशनल करके नाम आ रहा है इसमें। तो ये क्वेरी सिंपल है, इन्होंने कहा है कि कार परचेज करिए, इनएलिजिबल क्रेडिट है, 2B में आ रहा है, कहाँ शो करना है। तो मेरा मानना ये 17.5 के अकॉर्डिंग आप 17.5 का कॉलम स्पेसिफिक है, आप उसके अंदर ही शो करेंगे। ठीक है, वो लेस नहीं होता, वो हमने डिस्कस किया था, बट 3B के अंदर आपको उसी के अंदर शो करना है। दैट इज फॉर जब आपका 2B का डिफरेंस आएगा ना, तो आप टेबल 8 के अंदर एनुअल रिटर्न में तो इनएलिजिबल के अंदर उसे डाल देंगे, तब वो जाके चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। राइट। अमित Sale of अग्रवाल जी की goods. क्वेरी है। अमित जी का पॉइंट डिस्कस हो चुका आई थिंक ये वाला। नहीं अलग है। अच्छा हाँ If ये the अलग sale है। of goods in the movement of goods on the way at the reach of destination and party within 3-4 kilometer within state, then e-way bill required. सर बिल्कुल हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई लिमिट नहीं है अमित जी तरीके की। आप अगर 1 किलोमीटर और मूवमेंट सिर्फ, पता है एग्जाम्पशन क्या है अमित जी, अगर भैंसा बुग्गी पे बेच रहे हो या रिक्शे पे बेच रहे हो जिसमें भी मोटर नहीं लगी हुई, तो आपको ई-वे बिल नहीं बनाना, या हाथ से ले जा रहा है तो नहीं बनाना, सेम बिल्डिंग में मूवमेंट विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो नहीं बनाना। बट ये नहीं है, वो एक जो लिमिट थी ना सर, वो ट्रांसपोर्टर की डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए लिमिट है। या धर्म कांटा तक दूसरी लिमिट है, हाँ। 25 किलोमीटर। हाँ जी। अगर आप सप्लायर टू रेसिपिएंट 1 किलोमीटर के बीच में भी उसे मोटराइज कन्वेयंस पे, बिल्कुल करना पड़ेगा। अंकित जी ने उसे अच्छी टर्मिनोलॉजी दी, अगर आप मोटराइज कन्वेयंस पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। नहीं सर, एक्चुअली में आज भी चांदनी चौक में वो सब आप देखेंगे नॉन मोटराइज व्हीकल्स वहां पर चलते हुए मिल जाएंगे। या बिल्कुल चलते हैं। और रिक्शा में आप एक बार बताइए, ड्राई फ्रूट्स एक रिक्शा में 20-20 लाख के 30-30 लाख के आ जाते हैं। सो है तो है चीजें ऐसी है। सर, इफ द इनपुट टेकन ऑन सिक्योरिटी सर्विसेज व्हिच इज अंडर रिजर्व, then it has to be reversed, or if we pay RCM that would be sufficient. पारस जी, अगर मेरा मानना है, सिद्धांत जी आप ऐड कीजिएगा, अगर आपने सिक्योरिटी वाले को पे कर दिया है जीएसटी, उसने जमा करा दिया है, तो जैसे सिद्धांत जी ने कहा कि वो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, मगर गलती उसकी है और आप लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप एक काम कीजिए, आप उसे बोलिए कि वो अपनी अमेंडमेंट करेगा 1 के अंदर, 3B के अंदर, और आप उसे आरसीएम पे कर दीजिए। सिद्धांत जी प्लीज आप ऐड कीजिएगा कुछ अगर करना है। मेरे को ये नहीं लगता कि वो मतलब क्योंकि मुझसे टैक्स ले चुका है, उसने जमा भी करा दिया होगा, आप उसका भी क्रेडिट ले लें, और बहुत ज्यादा सेफ साइड चलना चाहते हैं तो आरसीएम पे जमा करा के फिर क्रेडिट ले लें। वैसे ये सेटल्ड इशू है कि आपको आरसीएम पे जमा करने की जरूरत नहीं है और फॉरवर्ड चार्ज का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अश्विन जी, आपकी क्वेरी हम लाइव डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले लास्ट क्वेरी है मानस जी की। मानस जी की case GSTR 10 did not file due to DSC is expired, that director leave the company already, but on portal it is showing cancelled Suomoto by department. Now what is the remedy? User ID also not working. As per the law, GSTR 10 is mandatory. If you have your registration is cancelled, even if your user ID is active, you can see there is a late fee also coming on that. That is a issue has been raised to the government also, because उस फॉर्म की अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो मेरा मानना यह है कि रेलिवेंसी नहीं है। दैट इज जस्ट अ बेसिकली फॉर्म, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो, बट लॉ यही है मेरे अकॉर्डिंग, जीएसटीआर 10 जाना चाहिए। अगर आप नहीं कंप्लाई कर रहे तो नॉन कंप्लाइंस है सर, या तो आप जाके रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कराएं, दोबारा से रिस्टोर कराएं, फिर उसे करें, लॉ को कंप्लाई करना है। बट ऑन दिस पोर्टल वी कैन से दैट लॉ की रिक्वायरमेंट है, जीएसटी 10 जाना चाहिए। सिद्धांत जी प्लीज आप ऐड कीजिए। मैं सर जीएसटी, अब इन्होंने ये बताया कि यूजर आईडी पासवर्ड, देखिए कैंसिल हो गया वो ठीक है, अब आपको जीएसटी 10 फाइल करनी थी विद इन 3 मंथ्स। यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप
डिपार्टमेंट के पास जाएं, अपना अथॉरिटी लेटर लेके यूजर आईडी पासवर्ड रिट्रीव कराएं और उसके बाद आप GSTR 10 फाइल कर दें अलोंग विद लेट फी इफ दैट इज कमिंग। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका ये है कि आप चुपचाप साइलेंटली बैठे रहें और डिपार्टमेंट जब भी आएगा वो 10,000 ही डिमांड करेगा क्योंकि इस लेट फी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके अलावा वो आपसे कुछ मांग नहीं सकता। तो बी लेट इट बी एज इट इज। सेकंड ऑप्शन इज दैट। एक क्वेरी आस्तोष जी हैंड रेज है, आस्तोष जी का। आस्तोष जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। आस्तोष जी आर यू देयर? एक और क्वेरी आई है चैट बॉक्स में। इन मोस्टली कंपनी यूज CN ओनली फॉर एड्रेस चेंज, इज इट करेक्ट? हेलो सर, ये क्वेरी आपके पास है? हाँ जी, आशुतोष जी बताएं पहले। यस यस। सर, वो क्या होता है ना मोस्टली कंपनी में, जैसे क्रेडिट नोट का जो नोटिफिकेशन है, सॉरी एक्ट में है कि कुछ पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बार कंटिन्यू में सर्विस आ रहा है, फिर आता है कि नहीं हमने आप इस एड्रेस इस GST पे बिलिंग कर दो, उस GST पे बिलिंग कर दो, ये रॉन्गली आ गया। ये कंटिन्यू सिर्फ एड्रेस चेंज और GST चेंज होता है, ऐसा कोई सर्विस में रिडक्शन वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं। तो इन फ्यूचर कभी कुछ लिटिगेशन हो जा सकता है ये? सर मैं ये कहूंगा, देखिए इसको रेगुलर प्रैक्टिस ना बनाएं आप। वंस और ट्वाइस, नहीं रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए सर। वंस और ट्वाइस इट इज फाइन, क्योंकि एक सर्कुलर है, आई थिंक सर्कुलर नंबर 164 है, जहां पे उन्होंने क्रेडिट नोट एक ऐसी सिचुएशन में अलाउ किया है जहां पे लॉ परमिट नहीं करता है। तो टेकिंग 164 CGST, आई ब्लाइंडली रिमेम्बर, मैं आपको उसे कन्वे कर दूंगा सुमित जी के थ्रू, जो फाइनल अल्टीमेट अगर जो दूसरा सर्कुलर होगा, तो उसमें उन्होंने सेक्शन 34 के बियॉन्ड जाकर के भी ये कहा है कि इस सिचुएशन में आप क्रेडिट नोट रेज कर दें और अपना एडजस्टमेंट ले लें। वेदर दैट विल सर्वाइव बिफोर द कोर्ट्स और नॉट, ये भी एक अपने आप में कंट्रोवर्सी रहेगा, बिकॉज कोर्ट्स आर नॉट बाउंड बाय द सर्कुलर्स। लेकिन आपके केस में हाँ, जहां पे पॉसिबल नहीं है वहां पे आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और नया इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, बट इसे कम से कम डिसिप्लिन मेंटेन करके चलें, क्योंकि डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि सेक्शन 34 में आपको ये एंटाइटलमेंट नहीं थी। इस तरीके से ऑलरेडी हम ऑडिट पैरास देख रहे हैं और वो दोनों ही इवेंट्स पे टैक्स डिमांड कर रहे हैं। सप्लाई हुई एक, बट क्योंकि डॉक्यूमेंट दो हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आपको 2 बार टैक्स देना पड़ेगा। अब उसको हम चैलेंज करेंगे, तो ये लिटिगेशन तो आएगी अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस को मेंटेन करोगे। और जहां पे सेम, मैं जैसे जहां जिन केसेस में अमेंडमेंट पॉसिबल है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, आप अमेंडमेंट वाला रिकोर्स लो, क्रेडिट नोट वाला रिकोर्स मत लो। ओके, क्योंकि वैसे नहीं एप्लीकेबल हम लोग के ऊपर। हाँ जी, ठीक है, अमेंडमेंट पोर्टल पे जाके ना, हाँ, अमेंडमेंट विद इन द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 37 एंड 39 आप अमेंडमेंट का ऑप्शन है, जो सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर की टाइम लिमिट है। अश्विन जी, you please ask your query. हेलो जी सर प्लीज। आवाज आ रही है मेरी सर? सर आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा सर, वीडियो डिस्टर्ब्ड है। राइट सर, जब प्लीज आस्क। सर इसमें ऐसा है मेरे नॉलेज में कि अगर आप कोई भी एग्जाम्प्टेड इनकम दिखाते हैं 3B में, तो इन लोगों ने रिवर्सल के साथ लिंक किया हुआ है। अगर मैं 42, 43 का रिवर्सल नहीं दिखाऊंगा तो वो लोग नोटिस भेज देंगे। तो मेरा जो बैंक वाला क्वेरी था, क्या उसमें मैं 42, 43 में दिखा सकता हूँ रिवर्सल वाला? सर मैं ये कहूंगा, आई गॉट योर क्वेरी। देखिए डिपार्टमेंट जिस तरीके से चलता है, आप अपनी प्रैक्टिस लीगली उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। कल को डिपार्टमेंट ये कहेगा कि आपने ये रिवर्सल 42, 43 में नहीं किया, आपने डिक्लेयर 42, 43 में किया है, तो अब आप इसी के अकॉर्डिंग करो। तो डिपार्टमेंट का तो क्या है, चश्मे का रंग लाल है, जो आप करोगे उसके अपोजिट जाएगा वो। लेकिन लीगली आपके लिए वो अदर्स ही रिकमेंडेड है, आप उसी में उसे रिपोर्ट करो। डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा, हम कहेंगे कि क्रेडिट ऑलरेडी रिवर्स्ड है, अदर्स कैटेगरी में रिवर्स्ड है क्योंकि मैं बैंक हूं और 17(4) मेरे पे लगता है। ये जनरल केस है जो आप डिस्कस कर रहे हो, जहां पे वो हर किसी केस में ये कह रहे हैं कि एग्जाम सप्लाई रिपोर्टेड है तो 42, 43 का रिवर्सल नहीं रिपोर्ट किया। एक बार आने दो ना नोटिस, उसका रिप्लाई कर दो आप कि आपने 17(4) का रिवर्सल अदर कैटेगरी में किया हुआ है। अब अगर आप 42, 43 में चले जाओगे तो मैं ये कहता हूँ डिपार्टमेंट कल को ये कहेगा कि 17(4) के अकॉर्डिंग तो आपने किया नहीं, 42, 43 के अकॉर्डिंग आपने इंटीमेट किया है, अब एक्चुअल कैलकुलेशन आप प्रूव करो। और वहां पे बैंक्स में मैंने जनरली ये देखा है कि वो 50% से कम बनता है क्रेडिट, 33% to 40% का रेशो जाता है एक्चुअल में, और वो फिर आपको उतना ही देंगे। तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे आप अपनी
स्टैंडिंग को चेंज मत करो, आप उसको इसके रिगार्डिंग में राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रैल में ही कुछ सर्कुलर इशू किया है, आउट टू 5(3)B, ओके ओके तो उसमें भी ये सब उसने एलोबरेट किया हुआ है। ओके, अगर सर्कुलर आपके स्टेट में इशूड है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, But, राजस्थान गवर्नमेंट का है, हमारे स्टेट में तो, मैं तो गुजरात से हूँ, उसमें तो नहीं इशू किया हुआ है अभी। हाँ तो फिर सर मेरे हिसाब से आपको अदर्स में ही रिपोर्ट करना चाहिए। वरना एक काम कर सकते हैं सिद्धांत जी, मेरा सजेशन है कि आप एक लेटर लिख दीजिए जुरिडिक्शनल ऑफिसर को कि दैट वी आर डूइंग द रिवर्सल इन दिस कॉलम बिकॉज 42-43 इज नॉट एप्लीकेबल, इफ एनी ऑब्जेक्शन प्लीज लेट अस नो, जस्ट पुट इट इन द डिपार्टमेंट नॉलेज कि आप कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली तो सर क्या है कि 17(4) का एप्लीकेशन ऑनलाइन लाइव भी नहीं हुआ है अभी, तो हम ऐसा ही ले रहे हैं, पोर्टल पे फैसिलिटी नहीं है सर। बहुत प्रॉब्लम्स हैं अश्विन जी, वी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। मैंने बताया ना अभी आपको 17(5) का एग्जांपल दिया, मेरे पास लाइन से एग्जांपल है सर, क्या बोलें, बट किसको बोलें, क्या बोलें, बराबर है, किसको बोलें और क्या बोलें, कोई सुनवाई तो सभी को पता है कि किस लेवल पे सुनवाइयां हो रही हैं। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो सारे इश्यूज है ना अंकित जी, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। आई गेस सारी क्वेरीज भी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। एक क्वेरी रह गई है सिद्धांत जी, ठीक है पहले बोले लेते हैं। वीबी जैन की क्वेरी है, आपको शो हो रही है? इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन एनी प्लॉट सोल्ड अलोंग विद एमिनिटी? सर वो ये प्लॉट डेवलप्ड प्लॉट सेल कर रहे हैं सिद्धांत जी। सर नो टैक्स, नो टैक्स, वेरी हमारी क्लियर माय ओपिनियन तो व्यू। यही है कि नो टैक्स। आप इसमें गुजरात एडवांस रूलिंग है ना जो फेवरेबल है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट भी उसे सेल करते हैं तो भी टैक्स नहीं है, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही है वो कॉमन डेवलपमेंट है, उसका ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती, ट्रांसफर तो लैंड ही होगी, और उस लैंड की पे जीएसटी नहीं है। प्लस उसमें ये भी कहा गया है एक एडवांस रूलिंग में, आई थिंक इसी में, ये गुजरात वाली में, कि जो आप एमिनिटीज आप डेवलप कर रहे हैं, दैट एमिनिटीज डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, that would be handed over to the municipal corporation out there. Right. So road is not for that person only, that is for the government. So वो एडवांस रूलिंग में क्लियर किया गया है कि आपको जीएसटी मतलब नहीं लगाना प्लॉटेड के ऊपर, और प्लस और भी मतलब लीगल बैकिंग अगर हम करेंगे तो हमारी ओपिनियन तो सिद्धांत जी और मेरी तो यही है, अभी हमने डिस्कशन भी किया था पीछे, कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। So क्वेरी सारी सिद्धांत जी आप प्लीज, क्वेरीज तो कंक्लूड हो गई हैं, अब आगे आप एनी क्लोजिंग रिमार्क्स सिद्धांत जी फ्रॉम योर साइड? Sir, I would just conclude with this: as tax consultants, as chartered accountants, or as advocates, we must appreciate 2-3 lines of Supreme Court pronounced in Bharti Airtel. They very clearly say in a para that output tax liability as well as input tax credit, जो आपकी output tax है और ITC है, that is to be self-assessed on the basis of primary documents, which are books of account, invoices, and agreements entered into between the parties. इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको अपनी लाइबिलिटी और आईटीसी को सेल्फ असेस करना है। ये 2 पैराज में उन्होंने रिपीटेटिवली लिखा है, और इसके बाद ऐड ऑन किया है कि GSTN पोर्टल इज ओनली अ टूल टू रिट्रीव और फीड द इंफॉर्मेशन। भारती एयरटेल ने यही कहा था कि भाई पोर्टल पे 2A की फैसिलिटी नहीं थी, मैं क्रेडिट सही नहीं असरटेन कर पाया और मैंने टैक्स कैश में पे कर दिया, तो उसका रिफंड दे दो मुझे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जीएसटी से पहले भी और जीएसटी में भी सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन है। आपको अपनी आउटपुट टैक्स और आईटीसी दोनों ही सेल्फ असेस करनी है, जिसके 3 प्राइमरी डॉक्यूमेंट है: बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके इनवॉइसेस और एग्रीमेंट्स विद द पार्टीज। पोर्टल केवल एक टूल है आपको सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये जो पैरा है ना, दिस विल सर्टेनली बी अ की फैक्टर इन द लिटिगेशंस टू कम, जहां पे इस तरीके के इश्यूज आएंगे आईटीसी को लेकर के, कि 2A 2B मिसमैच या बोगस केसेस में, जहां पे अराइज इंडिया जैसे जजमेंट्स हमें हेल्प करेंगे, और ये रेशो कभी भी रिवर्स नहीं होंगे। ये जो रेशो ले डाउन किए हुए हैं कोर्ट्स ने, दैट विल आल्सो बी कंटिन्यूड इन जीएसटी। तो जहां पे जेन्युइन केसेस हैं वहां पे आपको बॉदर होने की प्रॉब्लम नहीं, बॉदर नहीं करना चाहिए।
थैंक यू सिद्धांत जी. अंकित जी, you want to add closing remark? नहीं, बिल्कुल जो सिद्धांत जी ने कहा कि जो फीलिंग अभी प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट ने सबको फील कराया है, इवन टैक्स प्रोफेशनल्स को भी और क्लाइंट्स को भी, दैट जीएसटी पोर्टल इज माय बाप. What is going on a GST portal, either it is correct or it is wrong. That is a law. I agree with the Siddhant ji, that is not a law. First thing. Second thing, GST portal पे अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, अप्रैल का 2B जनरेट नहीं कर पाए. They basically extended the date 3 days, 4 days. Government will never accept कि अब क्यों डेट एक्सटेंड कर दिया आपने, बड़े सिस्टम फेल हो गए. सेकेंड एग्जाम्पल, मई में आ जाते हैं, इनवॉइसेस आर रिफ्लेक्टेड 2 टाइम्स. अप्रैल के 2B में भी आ रहा था, मई के 2B में भी आ रहा था. फिर क्लैरिफिकेशन आई जी क्रेडिट एक बार ही लेना है. They don't know कि that tax professional does not consider GST portal as a law. But this need to be understand, this need to be communicated to the client too. क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें, मतलब I does not say any percentage, but the people who are not taking the help of the professional, what they are thinking कि जो 2B में आ रहा है उठा के ले ले क्रेडिट. क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा, आप 2B की फिगर्स को हल्का सा हिलाते हैं, वो जो 3B के कॉलम से वो रेड हो जाते हैं. मेरे कई क्लाइंट कहते हैं मुझसे कि अंकित जी हमने इसे 1 रुपए से हिला दिया, ये रेड हो गया. अंकित जी हम तो 2B, ये कल को नोटिस आ जाएगा. व्हाट वी शुड से कि भाई 2B में जो आ रहा है सारा क्रेडिट नहीं लेना तुझे, सेक्शन 16 भी तो कंप्लाई करना है. सो देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन, myths is going on. But we as a professional understand that GST portal is not a law. The law is law, the act, CGST Act and the state acts in which we are dealing with. So accordingly, we have to go by the law, not by the portal, not by the forms. Forms में बहुत सारे कॉलम नहीं है अश्विन जी, बहुत जगह बहुत सारे कॉलम्स नहीं है. जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, हमने देखा, हमने फील करी प्रॉब्लम्स. अभी मैं बात कर रहा हूं जो आईटीसी की, अगर हम बात करें, जब स्टार्टिंग में जीएसटी लॉ लेके आए, तब मेरे पास जो क्रेडिट अवेलेबल था, जो मेरी रिवर्सल्स थे, जो सर्विस टैक्स के अंदर क्रेडिट नोट्स थे, उसका मुझे क्रेडिट सीजीएसटी से मिलना था. बहुत सारे कॉलम्स नहीं थे, बट लीगली जो ठीक था हमने उसके अकॉर्डिंग करा. तो मेरा सिंपल ये कहना है कि नो फॉर्म्स डिबार्ड यू फ्रॉम टेकिंग द क्रेडिट्स, नो GST portal debarred you to follow the law. You have to follow the law, what law says. And we have seen this with the changes made by the government from time to time. They understand, they made the changes. So GST में तो अभी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है. So what should we say? अभी 5 साल होने वाले GST के, और हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं आजादी का, बट अभी भी बहुत सारे जो लॉ में लिखी हुई है चीजें वो पेंडिंग है. So, but taking on the positive note, right now we are not facing any problem of the portal of hanging, and that's all. So we say that that's a good enough. Government ने जो किया, पोर्टल को अच्छा बनाया है. तो accordingly with this infra we have to move on and follow the law, not the GST portal blindly. I say, I end with these words. And for the query, as Sumit ji, we are all are from a group, and since we have communicated to all about the seminar, so you have number of Team CASA. You can give query anytime on that platform. I and Siddhant ji will answer it. Not an issue at all. There is no need कि हम जब एक सेशन करें तभी आप क्वेरी पूछें. अगर आपकी कोई क्वेरी है और अर्जेंट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप सुमित जी के द्वारा कम्युनिकेट हम लोगों से, मुझसे और सिद्धांत जी से कर सकते हैं, और आप क्वेरी पूछ सकते हैं. और मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवाद दूंगा. मैं टीम कासा की तरफ से सिद्धांत जी का भी धन्यवाद दूंगा. बहुत अच्छे से विद लॉ, विद प्रॉपर सिद्धांत जी ने सभी क्वेरीज को आंसर किया. और सुमित जी आपका भी धन्यवाद दूंगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार. So let's do this on weekly or monthly basis so that the query will be sorted out in future. Definitely अंकित जी, we will try कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा वीकली या फोर्टनाइटली कोई शेड्यूल कर सकें. और हमने देखा कि आज विदाउट ए टॉपिक इन जीएसटी 1.5 घंटे हो चुका है, फिर भी हमारी क्वेरी कहते हैं ना कि अभी डिस्कशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है. तो जीएसटी लॉ ही ऐसा है कि जिसमें जितना पढ़ा जाए उतनी क्वेरी. जी सिद्धांत जी.
क्वेश्चन एंड आंसर काफी अच्छा रहता है, इंटरेक्टिव। देखिए बाकी सेमिनार्स में क्या होता है कि आप अपना डेलिब्रेट कर जाते हो, फिर क्वेरीज एंड आंसर्स के लिए टाइम नहीं रह पाता है। तो ये Q&A डायलॉग भी सेशन होते रहना चाहिए, एंड रेगुलरली अदर स्पीकर्स आल्सो शुड पार्टिसिपेट। हमारी भी नॉलेज इनहांस होती है जब इस तरीके की क्वेरीज आती हैं, तो हमें भी थैंक करना चाहिए ऑडियंस का, एंड दैट इज हाउ इट शुड गो ऑन। डेफिनेटली सिद्धांत जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर क्वेरीज ना आए तो हम एज एन स्पीकर वी डोंट फील गुड। जब क्वेरीज आती है दैट ओवरऑल आवर माइंड आल्सो एंड वी लर्न आल्सो। अभी सेमिनार वेबिनार एंड होने के बाद माइट भी हम दो तीन क्वेरीज पे डिस्कशंस भी करें। सो ऑलवेज वेलकम सर, एंड आई से यू कैन टेक, मतलब वी आर अवेलेबल फॉर द प्रोफेशनल्स anytime. You can reach to us taking the WhatsApp to Sumit ji on a platform, and we can answer your queries. Not an issue at all. अंकित जी, we will try to make a group on WhatsApp, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं जहां पर हम केवल पार्टिसिपेंट की जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज डिस्कस करेंगे इन बिटवीन। अदरवाइज हमारा कोशिश रहेगा कि फोर्टनाइटली एटलीस्ट ये लाइव डिस्कशन जरूर रखें, सो डेट हम जितने भी क्वेरीज हैं उन सबको डिस्कस कर सकें। With this, a special thanks to Siddhant ji for your wonderful deliberation. Ankit ji, टीम कासा से it's a relation to वैसी कोई thanks. Definitely, thank you. Thank you to each participant for making this discussion wonderful. And इतनी सारी, more than I think 60-70 queries we have discussed in last 90 minutes. So thanks to each participant. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you.